مکمل ناول وفا میں ایمان فاطمہ روب ہیرو بیسڈ ناول رومانٹک ناول۔ کنزا ملک نے اپنی لاڈلی بیٹی کو تعصب سے دیکھا جو شال پہن کر سو رہی تھی۔ کمفرٹر آدھا نیچے لٹک رہا تھا اور آدھا اسے اوڑھ رکھا تھا۔ یا اللہ، یہ لڑکی کب سدھرے گی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے نوکس اکٹھے کرنے لگی۔ پری اٹھ جاؤ بیٹا، آج تمہارا یونیورسٹی کا پہلا دن ہے اور پہلے دن ہی لیٹ جاؤ گی۔ وہ اسے ہلاتے ہوئے بولی۔ پری نے نیم بند آنکھوں سے اسے دیکھا اور منہ پسوڑ کر بولی، مما میرا آج بالکل دن نہیں کر رہا، میں نہیں جاؤں گی، اور دوبارہ تکیے میں چہرہ چھپا دیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہارے بابا کی خواہش ہے تم افنان کی طرح بزنس سنبھالو، مگر نہیں، تمہیں تو ان سے فرصت نہیں ملتی۔ پڑھو گی کب؟ کچھ شرم کر لو، تمہارے پاپا کا اتنا بڑا بزنس ہے، تم دونوں بہن بھائی نے اسے سنبھالنا ہے۔ کنزا ملک نے کہا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے سب کچھ، میں کہتی ہوں کہ میری زندگی میں کچھ ایڈونچر ہو، میں کھانے بناؤں، پھر کے پوچھے لگاؤں، پتہ نہیں کیا کیا کروں۔ کاش میں کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی، امیروں کے گھر کے پیدا کرتی مجھے لمیاں، لائف میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو کنزا ملک نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے سکتا ہے ورنہ کوئی اور نہیں، چلو اب فوراً اٹھو اور فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، کنزا ملک نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پری نے سر جھٹکا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زبیر ملک اور کنزا ملک ڈائننگ ہال پر بیٹھے تھے۔ پری نے انہیں گڈ مارننگ کہا اور اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سو بچے، کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ زبیر ملک نے اپنی لاڈلی جان سے پوچھا تو پری نے منہ بسوڑ کر کنزا ملک کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کیسی جا رہی ہوگی، اتنی مشکل سے اٹھایا ہے، آج یونیورسٹی کا پہلا دن ہے اور یہ پہلے دن ہی لیٹ جا رہی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ اسے سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، ان کی گھر کے کام کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے یہ ہماری بیٹی ہے۔ کنزا ملک نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زبیر ملک بے اختیار مسکرا دیا۔ ارے کرنے تو اسے، ہماری مینا ہے یہ، اگر یہ نہ بولے تو ہمارے گھر میں سناٹا ہو جائے۔ اور دیکھو اپنا اپنا بمشکل چند لفظ بولتا ہے، مجھے تو کبھی کبھی یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنی بیوی سے کیا باتیں کرے گا۔ زبیر ملک نے اچھی ہنستے ہوئے کہا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میری زندگی کا ایک بار کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے، تو دوبارہ سے اس چکر میں کیوں پڑھوں؟ یہ لڑکیاں ویسے بھی بے وفا ہوتی ہیں، افنان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، آپ میری اور ماما کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ پری نے منہ بسوڑ کر کہا تو افنان دھیما سا مسکرا دیا۔ آئی ایم سوری، میں نے یہ بات آپ دونوں کے متعلق نہیں کی، میں نے اور لڑکیوں کے بارے میں کہا، آپ دونوں تو میری اپنی ہیں، میں جانتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں۔ افنان نے اس کی رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پری نے جلدی سے ناشتہ مکمل کیا اور اپنا بیگ اٹھایا اور دوپٹے کو درست کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بلیک اسکرٹ اور پنک فلاور والی سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی سوسائٹی میں جینز عام تھی مگر وہ کم پہنتی تھی۔ یونیورسٹی پہنچنے پر سب کی نظریں اسی پر تھی۔ زبیر ملک کی بیٹی ہونے کی وجہ سے پرنسپل خود اسے کلاس تک چھوڑنے آئے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو آخری کونے میں ایک لڑکی کو دیکھا جو حجاب میں سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ ہائے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ پری نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ پری اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا بیچ چہرہ سفید رنگت اور ناک میں نوز پن جگمگا رہی تھی، آنکھیں سیاہ تھی۔ لڑکی نے ذرا اس بات میں ہلایا تو پری اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ پری نے کہا۔ جی ضرور۔ لڑکی دھیمی سی مسکراہٹ سے بولی، آپ بہت حسین ہیں، ویسے تو میں بھی بہت پیاری ہوں لیکن آپ کے سامنے تھوڑی پھیکی سی لگ رہی ہوں۔ پری چہک کر بن گئی۔ لڑکی نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ ویسے میرا نام پری سے ہے، پری نے۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ پری نے پوچھا۔ محروح خان، وہ لڑکی آہستہ سے بولی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی۔ اوف اللہ، کیا لگ رہا ہے آج آریان، میں تو دیکھ کر فیل۔ وہ پاس سے ایک آواز سنائی دی۔ پری چونک کر اس کی طرف دیکھنے بولی، کیا یار عجیب لڑکی ہے، اب یہ آریان خان کون ہے؟ کنفرم ہے یہ یونیورسٹی کا سب سے کھڑوس بندہ ہوگا۔ معروف مسکراتی رہی۔ نہیں، وہ بہت اچھا ہے، معروف نے کہا۔ چلو مل کر دیکھتے ہیں، وہ بولی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور معروف کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ویسے معروف، تمہارا یہ آلیان واقعی کافی پراسرار لگتا ہے، لیکن میں ایسے لوگوں سے زیادہ لمبے عرصے تک دور نہیں رہ سکتی۔ میرا مقصد ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے۔ ہاں، وہ چمکدار مسکراہٹ سے بولی۔ معروف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں تمہارا انداز بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ تم سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن آلیان ایسا نہیں ہے، وہ بہت محتاط رہتا ہے، خاص طور پر جب بات ذاتی زندگی کی ہو۔ پری نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا مطلب تمہارے خیال میں وہ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہے؟ معروف تھوڑی دیر خاموش رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہے، پھر آہستہ سے بولی، میری اتنی گہری بات چیت نہیں ہوئی اس سے، لیکن سنا ہے کہ اس کے ماضی میں کچھ تکلیف دہ واقعات پیش ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے سے دور رہتا ہے۔ پری کی آنکھوں میں جس پر گیا، کیا واقعات؟ معروف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کسی کو ٹھیک سے نہیں معلوم، بس افواہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کی مانگنی کسی لڑکی سے ہوئی تھی، پھر کچھ ہوا اور رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کی بات سے بہت کم بولتا ہے اور کسی سے ذاتی تعلقات بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ پری نے گہری سانس بھری اور سوچ پڑ گئی، اور شاید اسی لیے وہ اتنا سنجیدہ رہتا ہے۔ معروف نے آہستہ سے سر ہلایا، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لے آئے گا، شاید اسے کسی کی ضرورت ہو جو اس کے دل کا حال سمجھے اور اس کا ساتھ دے۔ ویسے تم بھی کر سکتی ہو، پری نے ہنستے ہوئے کہا، تو تم کہنا چاہتی ہو میں وہ کسی ہوں جو یہ کر سکتی ہے؟ معروف نے ہنس کر کہا، نہیں یہ میں نے نہیں کہا، لیکن تم جیسی خوش مزاج اور پراعتماد لڑکی اس کی زندگی میں کچھ روشنی تو لے آ سکتی ہے۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہو سکتا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ ویسے بھی میں کوئی بڑی منصوبہ بندی نہیں کرتی، جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سر جھٹک کمپیوٹر کلاسز کے لیے چلی گئی۔ وہ جا کر بیزاری سے بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اس کی نگاہیں ایک شخص پر ٹھہری جو کہ بہت ہینڈسم تھا۔ اسے ارد گرد کے ماحول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کہیں یہ وہی کھڑوس آلیان تو نہیں؟ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا چیز۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی۔ آلیان ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے میں پوری طرح سے مصروف تھا جب ایک لڑکی آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہائے، میں پری سے، اور آپ؟ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ آلیان نے سر اٹھائے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ آلیان، اس کے لہجے میں عجیب سرد مہری تھی،
इससे लगा ये भी बाकी लड़कियों की तरह उसे मुतासिर करने आई, जिससे वो बेजार हो गया। वैसे आप यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर हैं, आपसे ही मिलना चाहती थी। मारूफ ने बताया कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे। आपको देख के मुझे लगता है शायद वो ठीक कह रही है। मारूफ का नाम सुनकर आलियान के टाइपिंग करते हाथ रुक के उसने चौंक कर पूछा, मारूफ को कैसे जानती हो? क्या वो तुम्हारी दोस्त है? हाँ, अभी बनी है। वो किसी से ज्यादा बोलती मिलती नहीं है, लेकिन मैं खुद उसके पास गई, फिर कैंटीन में ले आई, बस हमारी दोस्ती होगी। उसने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया, यहाँ तक कि आप किसी लड़की से मोहब्बत करते थे लेकिन धोखा मिला, इसीलिए आप इतने सर्द मिजाज हो गए। वो कह रही थी शायद मैं आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकती हूँ, पर ये नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। आलिया ने बेख्तियार कान पे हाथ रखा और सर्द लहजे में बोला, अगर मारूफ ने तुम्हें कुछ बताया तो तुम्हें चाहिए दोस्त होने के नाते वो बातें अपने तक महदूद रखे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। परी से एकदम चुप हो गई। नहीं, मैं किसी का राज अफशा नहीं करती, बस वैसे ही बात करती। असल में मुझे ज्यादा बोलने की आदत है। वो मरे मरे लहजे में बोली, तुम्हें बहुत ज्यादा और फजूल बोलने की आदत है। प्लीज मेरा वक्त ज़ाया मत करो, मुझे बहुत जरूरी काम है। आलियान के सर्द लहजे ने इसे मजीद चुप करवा दिया। परीजे ने इर्द गिर्द नजरें दुराई तो दूसरी लड़कियां से तंजिया मुस्कुराहटों से देख रही है। इसे इंतहाई सबकी महसूस हुई। आप बहुत बदतमीज है, इंसान को संजीदा होना चाहिए मगर बदतमीज नहीं। वो तलख लहजे में बोलती उठ खड़ी हुई। आलियान ने सर झटका और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। शाम को जब वो ट्यूशन वगैरह के बाद घर पहुंचा तो देखा कि उसके दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ बाहर जा रहे थे। वो गहरी सांस लेता हुआ अंदर गया और माहरूफ को आवाज देने लगा। जी भैया। माहरूफ पास आकर बोली, पागल लड़की को तुमने मेरे पास भेजा था और क्या तुमने उससे कहा कि वो मेरी जिंदगी में खुशियां भरेगी? पागल हो गई हो क्या? वो गुस्से से बोला, सॉरी भैया, मुझे लगा वो अच्छी लड़की है इसीलिए मैंने ऐसा कहा, और मुझे क्या पता वो आपके सामने जाकर ये बात कर देगी। वो सर झुकाए बोली, अच्छी लड़की? वो एक बिगड़ी हुई अमीर साथी है। वो जानती हो कौन है? इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन जुबैर मलिक की बेटी है। वॉट? वो इतनी अमीर है? लेकिन भैया मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वो इतनी अमीर है। वो इतनी सिंपल से लगी। वो लब चबाती हुई बोली, इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं उसके वालिद, और मेरी मानो तो तुम उससे दूर रहो। और बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो सकती, बिगड़ी हुई होगी। वो तरक्की से बोला। और माहरूफ ने सर हिलाया। और आने वाले दिनों में माहरूफ ने वरीजे से जान छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर उसके पीछे ही पड़ी रही। आज भी वो माहरूफ के पास बैठी मुसलसल बोले जा रही थी। आखिरकार मारूफ एक झटके से उठते हुए सर्द लहजे में बोली, प्लीज मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी नोटिस बनाना है, तुम मेरे पास मत आना। वैसे भी मेरे भाई ने तुमसे बात करने से मना किया है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। अपनी हाई सोसाइटी के मुताबिक कोई और दोस्त ढूंढ लो। ये कहकर वो तेजी से चली गई। फरीजे की आंखों में एक पल के लिए खालीपन उतर आया, जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। वो चुपचाप एक कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गई और मारूफ उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। जब उसने टाइम देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। वो लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसका दिल जैसे बंद होने लगा। उसने जल्दी से अपना हैंड बैग तलाश करना चाहा, लेकिन वो भी गायब था। खौफ और बेबसी की कैफियत में वो कुर्सी पर बैठकर सर झुकाकर रो दी। फरीजे जो इसके जाने के बाद उसके बैग का ध्यान रखने के लिए वही बैठी थी, वो उसके भाई के बारे में सोचने लगी। आखिर वो ऐसा क्यों कहता है कि मुझसे दोस्ती मत करो? कौन है उसका भाई? क्या वो मुझे जानता है? पाँव चलाते हुए उलझन में मुब्तला थी। माहरूफ का इंतजार करते करते 5 बजने वाले थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। वो आखिरकार तंग आकर माहरूफ को ढूंढने निकली। यूनिवर्सिटी की गहमा गहमी कम हो चुकी थी। उसने एक साइड पर बैठकर इंतजार किया। फिर कुछ देर के बाद मारूफ का फोन रिंग हुआ। उसने फोन निकाला तो उस पर भैया कॉलिंग लिखा हुआ नजर आया। इसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो माही बेटी, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से बेताबी भरी लहजे में आवाज सुनाई दी। सॉरी मैं माही नहीं हूँ, उनकी दोस्त परी से बात कर रही है। वो जल्दी से बोली, मारूफ से बात करवाओ प्लीज। कहाँ है वो? आलिया ने नागवारी से पूछा। मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो खुद उन्हें ढूंढ रही। उनका बैग क्लासरूम में रह गया था, वही वापस करने आई और फिर अपने घर जा रहे हैं। परी से चिढ़कर बोली तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आलिया ने अचानक कॉल काट दी। परी से झंझलाकर मोबाइल को बैग में डालती हुई उठ खड़ी हुई। अचानक उसे याद आया कि मारूफ लाइब्रेरी की तरफ गई थी। वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ आ गई। जब वहां पहुंची तो देखा दरवाजा लॉक था। मारूफ तुम यहाँ हो? उसने ऊंची आवाज में पुकारा। हाँ परी, मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा हो गया है, मेरी सांसें रुक रही हैं। मारूफ पर मुश्किल बोली। परी से फौरन पलटी और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर उन्हें सारी सूरत हाल बताई। प्रिंसिपल ने फौरन लाइब्रेरी खोलने का हुक्म दिया। जब दरवाजा खुला तो मारूफ जमीन पर दुखड़ी हुई बैठी थी, पसीने में शराबोर। फरीजा जल्दी से उसकी तरफ लपकी, उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और उसके बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे पिलाने लगी। जब मारूफ के हवास बहाल हुए तो फरीजे ने उसका बैग इसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे भाई का फोन आ रहा था, वो तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मुझे नहीं पता, तो तुम्हें उन्हें कॉल करके बता दो तुम ठीक हो, फरीजे ने कहा। मारूफ ने सर हिलाते हुए कॉल मिलाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। मेरा ख्याल है भैया परेशान हो गए होंगे, मारूफ ने आहिस्ता से कहा। या तुम अपने भाई के साथ ऑफिस जाती हो? अगर तुम उनके साथ नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें ऑटो करवा देती हूँ, या फिर अगर मुनासिब लगे तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ देती हूँ। फरीजे ने पेशकश की। मारूफ ने तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखा। प्लीज मुझे घर छोड़ दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक लगती, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। चलो फिर, मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, फरीजे ने कहा। मारूफ चुपचाप उसके साथ उठ खड़ी हुई। वो दोनों जैसे ही बाहर आई, सामने से आलिया तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। माही तुम ठीक हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, और इस बेवकूफ लड़की ने मुझे डरा ही दिया था। मैं घर से भागता हुआ आया, सोचा पता नहीं तुम कहाँ चली गई हो, आलिया ने बेचैनी से कहा। फरीजे ने हैरानी से दोनों को देखा। आप दोनों बहन भाई हैं? हम जो भी हैं ये बात में बताएंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हें शर्म नहीं आती? जान दिया तुमने मुझे कितने कहा कि तुम्हें मारूफ के बारे में कुछ नहीं पता। आलिया ने गुस्से से कहा। तुम लोग अमीर हो, इसीलिए तुम समझते हो कि तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का हक है, बिगड़ी हुई अमीर साथी कहीं की। वो गुस्से से बोला। फरीजे ने गुस्से से लप पीछे और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि मारूफ खामोशी से खड़ी रह गई। फरीजे गुस्से से गाड़ी की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए ड्राइवर से कहा,
کہ وہ اب وہاں سے کیب کروا کر گھر چلا جائے اور وہ اپنی گاڑی میں آتی ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ آلیان کے الفاظ ابھی بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ بگڑی امیر شادی کریں گی، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آلیان نے غصے سے ماہرخ کو بولا، یہ تمہاری دوست ہے، میں پتہ ہے اس کی وجہ سے کتنی دیر پریشان ہو۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ماہرخ نے نظریں نیچے کر لی۔ بھیا وہ ایسی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہو۔ آلیان نے سر جھٹکا۔ ماہرخ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس لڑکی سے دور رہو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ لوگ ہمارے جیسے نہیں ہوتے، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، بس اپنے ہی مزے میں رہتے ہیں۔ ماہرخ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آلیان کا غصہ بھی تھمنے والا نہیں تھا۔ پریزے نے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور گاڑی اسٹارٹ کی، لیکن گاڑی چلانے سے پہلے اس نے ماہرخ کی طرف دیکھا جو ابھی تک آلیان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا، کہا، ماہرخ اگر تمہیں جانا ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گی۔ ماہرخ نے آلیان کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے آلیان سے ملی، پھر وہ دھیرے سے پریزے کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ آلیان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، لیکن کچھ کہے بغیر خاموش رہا۔ ماہرخ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اندر کا ماحول عجیب طور پر خاموش تھا۔ پریزے نے گاڑی چلانا شروع کی، لیکن دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ گاڑی کا انجن اور باہر کے شور کے علاوہ کسی اور کی آواز نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد پریزے نے اچانک بریک لگائی۔ وہ ایک پارکنگ لاٹ میں گاڑی لے آئی تھی۔ ماہرخ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہم یہاں کے رک گئے؟ پریزے نے گہرا سانس لیا اور سر جھکا کر کہا، ماہرخ تمہارا بھائی میرے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے۔ میں امیر ہوں، لیکن میں نے کبھی خود کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھا۔ میں تمہیں یا کسی اور کو نیچے دکھانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ ماہرخ نے نرمی سے کہا، پری میں جانتی ہوں تم ویسی نہیں ہے، لیکن بھیا وہ میرے محافظ ہیں، محافظ کے متعصب۔ پری کی آواز میں تنخی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ میری حیثیت کو لے کر مجھے جج کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی میں ان سے بہتر ہوں۔ پریزے نے کہا۔ اس کی بات پہ ماہرخ نے آہستہ سے کہا، وہ صرف میرا خیال رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے میں کسی مشکل میں پڑوں، اور میں کیا کروں؟ کیا ایک مشکل؟ پریزے نے بے بسی سے کہا۔ ماہرخ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ پریزے کی باتیں درست ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چند لمحے میں خاموشی میں گزر گئے۔ پھر پریزے نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ ماہرخ نے بس سر ہلا دیا۔ گاڑی پھر سے سڑک پر روان ہو گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی کے احاطے میں وہی روزمرہ کا ہنگامہ تھا۔ طلباء اپنی اپنی کلاسز کی طرف جا رہے تھے، ہر طرف زندگی رواں دواں تھی۔ پریزے صبح سویرے ہی یونیورسٹی پہنچ گئی، لیکن آج وہ کچھ خاموش اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل کے واقعات اس کے ذہن پر بوجھ بنے تھے۔ وہ لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر آلیان پر پڑی، جو اسے دیکھتے ہی اپنی راہ بدل کر آگے بڑھ گیا۔ پریزے نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے قدم سست کر دیے۔ اسے آلیان کا رویہ بہت تکلیف دہ لگا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ لائبریری کے اندر وہ معمول کی سیٹ پر بیٹھ کے کتابیں کھول لی، لیکن اس کا ذہن پڑھائی پر مرکوز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آلیان کے الفاظ اور اس کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جیسا وہ سوچتا ہے، کیا میں ویسی ہوں؟ کیا میں واقعی ایک بگڑی ہوئی امیر شادی ہوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ اسی طرح ماہرخ لائبریری میں داخل ہوئی اور سیدھے پریزے کی طرف آئی۔ پری، کیا تم ٹھیک ہو؟ کل رات تم کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ پریزے نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ ماہرخ نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، پری بھیا کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، میں جانتی ہوں، لیکن وہ ایسے ہیں، مجھے پرواہ نہیں پارو، لیکن یہ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا میں ویسی نہیں ہوں جسے تمہارا بھائی سمجھتا ہے۔ ماہرخ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں پری، میں تمہیں چھوڑنے والی نہیں، چاہے بھیا کچھ بھی کہے۔ پریزے نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، شکریہ ماہرخ، چلو چل کے کینٹین سے کچھ کھا لو۔ پریزے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماہرخ اور پریزے کینٹین میں بڑھ کر کھا رہی تھی کہ اچانک آلوان آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ اس نے پریزے کے دیکھتے ہوئے کہا، ماہی میں نے تمہیں کہا تھا اس لڑکی سے ساتھ نہیں جاؤ، کل بھی تم نے میری اجازت کے باہر اس کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی، اور آج بھی اس کے ساتھ قیمتی وقت ضائع کر رہی ہو، تمہارا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ پریزے نے غصے سے کھڑے ہو کر کہا، ماہی میں چلتی ہوں، اور سنا اپنے بھائی کی باتوں پر کبھی عمل مت کرنا، وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، یہ محافظ نہیں پابندیوں کا حاکم ہے۔ پریزے نے یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے بہن پٹخا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آلیان نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر چپ چاپ اپنے کلاس کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو آلیان گھر آیا اور ماہرخ کو آواز دی، بھائی پلیز میرے لیے چائے بنا دو۔ ماہرخ چائے لے کر آئی اور آلیان کے سامنے رکھتے ہوئے پلٹنے لگی۔ تم نے کچھ کھایا تھا کیا؟ اسے اچانک پوچھا۔ ماہرخ نے چڑھتے ہوئے جواب دیا، آپ کو میری فکر کب سے ہونے لگی؟ ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہو، کسی دوست کو بنانے نہیں دیتے، جب ایک اچھی دوست ملی تو اس سے بھی ناراض کر دیا۔ آلیان نے جھنجھلا کر کہا، تم اچھی طرح جانتی میں نے تمہیں کیوں منع کیا، وہ لڑکی جھوٹی ہے، تمہیں پتہ ہے نا کل وہ کیا کیا اس نے، میں گھبرا گیا تھا جب میں نے سنا تم وہاں نہیں ہو، حالانکہ تم وہاں پر تھی۔ ماہرخ نے فوراً جواب دیا، میں لائبریری میں تھی، دروازہ بند ہو گیا تھا، 1 گھنٹے تک اکیلی پھنس گئی، اگر پریزے وقت پر نہ پہنچتی تو شاید میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ آلیان نے چونک کر کہا، واٹ، تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی کہ تم لائبریری میں پھنس گئی تھی اور پریزے نے تمہیں بچایا؟ ماہرخ نے نرمی سے کہا، میرے خیال میں تمہارے غصے نے مجھے ڈرا دیا تھا کہ میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب جب آپ کو پتہ چل چکا ہے تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اسے برا بھلا کہنا چاہیے۔ آلیان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، اچھا چلو میں اس کو شکریہ ادا کر دوں گا، لیکن مجھے ماننا پڑے گا کہ تمہاری دوست کی حقیقت جان کر میں بھی حیران۔ ماہرخ نے حیرت سے پوچھا، کیسی حقیقت؟ کچھ وقت کے بعد آلیان نے ہنس کر کہا، تو کل تک میرے خیال میں ایک بگڑی ہوئی امیر ذاتی تھی، لیکن آج معلوم ہوا وہ اتنی مہربان اور مددگار نکلی۔ ماہرخ نے مسکراتے ہوئے کہا، خیر اگر آپ کو احساس ہو گیا تو اچھی بات ہے، اور آپ نے جو شکریہ ادا کرنے کا سوچا ہے اس کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگ لیجیے گا۔ آلیان نے ناراضگی سے آنکھیں سکیڑ کر کہا، او ہیلو، میں معافی کیوں مانگوں گا، شکریہ کہہ دوں گا، بس یہی کافی ہے۔ ماہرخ نے تعصب سے سر ہلایا، ویسے آپ کی ناک چھوٹی نہیں ہوگی اگر آپ معافی بھی مانگ لیں گے، جب سب کے سامنے بدتمیزی کی ہے تو سب کے سامنے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ آلیان نے سر چٹکتے ہوئے چائے کا دیا، چلو سوچتا ہوں، وہ ٹالتے ہوئے بولا،
अगले दिन जब आलियान यूनिवर्सिटी आया तो उसकी नजरें मुसलसल परीजे को तलाश कर रही थी। कुछ देर के बाद हंसी मजाक करते देखा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। परीजे, मुझे तुमसे बात करनी है, आलियान ने कुछ झिझकते हुए कहा। परीजे ने उसे स्पार्ट नजरों से देखा। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आलियान ने इर्द गिर्द देखा और बोला, हम साइड पे जाकर बात कर सकते हैं? परीजे ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, ऐसी क्या बात है जिसके लिए अकेले में ले जाना जरूरी है? आलियान ने सर चटक कर जवाब दिया, बस एक अहम बात है, साइड पर चले। परीजे ने कुदरे बेदिली से कहा, ओके चले। वो दोनों साइड पर आ गए, लेकिन आलियान के दिल में हल्की सी झंझलाहट थी कि उसने ये सब करने का सोचा भी क्यों। क्या बात करनी थी, जल्दी करें, मेरे पास वक्त नहीं है, वो बेसारी से बोली। तो आलियान ने अपना गुस्सा दबाया और बोला, वैसे तो मैं किसी से सॉरी नहीं कहता, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, और तुमने मेरी बहन की मदद के लिए उसके लिए थैंक्स। परीजे ने आंखें सुकेड़ कर कहा, तो जनाब की अना का मसला है, जब आप सबके सामने इंसल्ट करते हैं तो माफी भी सबके सामने मांगनी चाहिए थी। कि माफिया मुझ पर एहसान करके नहीं मांग रही, और ना ही वैसे मुझे आपकी थैंक्स चाहिए। आलियान का गुस्सा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मेरा दिमाग खराब था कि तुमसे माफी मांगने आ गया, तुम इस लायक नहीं है कि तुमसे सॉरी की जा सके, वो गुस्से में बोला और वहां से चल दिया। परीजे ने पैर पटकते हुए कहा, अब जैसे लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर वो भी क्लास की तरफ चली गई। क्लास रूम में पहुंचते ही मारूफ ने फौरन इशारे में पूछा, क्या हुआ? परीजे ने सर नफी में सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे भाई के साथ एक छोटा सा एपिसोड हुआ है। मारूफ को अंदाजा हो गया कि मामला ठीक नहीं हुआ। वो खामोशी से सर माजिद की बातें सुनने लगी। सर माजिद ने सबको प्रोजेक्ट के ग्रुप्स में बांट दिया। जैसे रजिस्टर मेज पर रखा, सबने भारी भारी अपने नाम लिखने शुरू कर दिए। मारूफ और परीजे का नाम एक ही ग्रुप में आया। बाद में दोनों लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट के मवाद के लिए किताबें सिलेक्ट करने चली गई। दोनों ने इस प्रोजेक्ट की सिर्फ बुनियाद रखी और तय किया, कल मज़ीद काम करेंगे। छुट्टी के बाद मारूफ ने परीजे को कहा, कल जल्दी आ जाना ताकि हम प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। परीजे ने सर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से निकली मौसम खराब हो गया, बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगती हुई वो घर पहुंची और नतीजे में उसे फ्लो हो गया। इसी वक्त उसने मारूफ को फोन किया, यार मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम आज मेरे घर आ सकती हो, प्रोजेक्ट पर काम कर लेंगे। परीजे ने थकी हुई आवाज़ में कहा, भाई कभी नहीं मानेंगे यार। मारूफ ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, हद है यार, हम प्रोजेक्ट काम ही तो कर रहे हैं, कुछ नहीं, प्लीज आ जाओ ना। परीजे झंझलाकर बोली, ठीक है, भाई से पूछ कर बता दे। मारूफ ने कॉल काटते हुए कहा। शाम को जब आलियान घर आया तो मारूफ उसके कमरे में गई और कहा, भैया मुझे परीजे के घर जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और हमें प्रोजेक्ट पर काम करना है, प्लीज जाने दो ना, ये वक्त है जाने का। फिर मालूम है ना कि भाई और भाभी बातें बनाएंगे। आलियान ने संजीदगी से कहा, हाँ तैयार हो जाओ, लेकिन जब आना हो तो मुझे कॉल कर देना, किसी और के साथ आने की जरूरत नहीं। मारूफ उसके मान जाने पर बहुत खुश हुई। आलियान ने उसे मलिक हाउस के सामने छोड़ा तो वो अंदर दाखिल हुई। उसने सिताइशी निगाहों से इर्द गिर्द देखा और हौस से गुजरती वो लाउंज में आई। दरवाजा नॉक किया। परीजे ने दरवाजा खोला और खुशी से बोली, थैंक यू सो मच तुम आके, मुझे लगा तुम्हारा फरोज भाई कभी नहीं मानेगा। मारूफ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन देखो मैं यहाँ, चलो अब काम शुरू करते हैं, पहले डिनर करते हैं, मॉम और डैड इंतजार कर रहे हैं। परीजे ने सर हिलाते हुए कहा। फिर वो दोनों डाइनिंग हॉल में आई। जब अंदर दाखिल हुई तो उसकी मॉम डैड उसके साथ काफी पुरशफ़क़त अंदाज में बात की। वो उनके इस कदर मीठे अंदाज पर काफी रिलैक्स हो गई। वो छोटी मोटी बातें करते हुए डिनर करने लगे। डिनर के बाद जब वो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, मारूफ ने थके हुए लहजे में कहा, परीजे मुझे अब घर जाना होगा, भैया ने कहा था देर मत करना, रात को यहाँ रह जाओ, सुबह आराम से घर चले जाना। परीजे ने मुंह बसोड़ रखा, यहीं पड़ी, मेरा खड़ूस भाई कभी नहीं मानेगा। मारूफ ने हंसते हुए जवाब दिया, प्लीज एक बार मुझे बात करने दो, शायद हो सकता है मान जाए। तुम्हारा खड़ूस भाई, जरा प्लीज नंबर दिया मुझे, मैं कॉल करती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो, किचन में जाओ, मेरे और अपने लिए एक अच्छी सी कॉफी लिया, उसने कहा। फिर उसे हलाते उठकर बाहर निकल गई। मारूफ के जाने के बाद परीजे ने आलिया खान का नंबर मिलाया। ये उसी तरह से उसकी बोझल आवाज आई, हेलो मैं बात कर रही हूँ। परीजे ने कहा, कौन मैं? दूसरी तरफ से पूछा गया तो परीजे की आंखें शरारत से जगमगाने लगी। क्या मतलब, आप मुझे नहीं जानते? मैं आपकी दीवानी, आपकी मस्तानी ताकत कर रही हूँ। अजीब इंसान है, इतनी जल्दी भूल गया आप मुझे। अपना निचला लब दांतों तले दबाते हुए बोली, क्या बकवास है, कौन हो तो, तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर? आइंदा फोन किया ना तो पुलिस में शिकायत करूंगी। आलियान तक कब होगा? ओह माय गॉड, मतलब आप पुलिस में क्या बताएंगे? मिस्टर आलियान खान, यही की कोई लड़की आपको रात के वक्त फोन करके छेड़ रही थी, आपकी दीवानी मस्तानी कह रही थी, ये ना हो कि बोलता आपको ही पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दे। खैर मैं बता देती हूँ मैं कौन हूँ। परी से बात कर रही है, आपकी बहन की प्यारी सी दोस्त। वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली, ओह मुझे समझ जाना चाहिए था ये तुम्हें हो सकती हो, क्यों फोन किया? वैसे तुम्हारे पास मेरा नंबर खास हो? दूसरी तरफ से उसने चौंक कर पूछा, जाहिर बात है आपकी बहन से लिया होगा, वो मेरे पास था तो मैंने उससे नंबर ले लिया, और आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कल सुबह से यूनिवर्सिटी ले जाऊंगी और वो वापस भी मेरे साथ आएगी, इसलिए इसका इंतजार करने की जरूरत। प्लीज इत्मीनान से जाए, हमारे घर से कहीं गायब नहीं होगी, उसे कहो कि रेडी रहिए, मैं फौरन पहुंच रहा हूं उसे लेने। आलियान संजीदगी से बोला, अरे ऐसे कैसे आ जाएगी, हमारा प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हम थके हैं, कुछ देर आराम करेंगे फिर दोबारा काम करेंगे, प्लीज उसे रहने दीजिए। परीजे ने इल्तिजा की। कुछ देर के लिए दूसरी तरफ मोशी छा गई। फिर आलियान ने धीमे लहजे में कहा, तुम समझते नहीं ना परीजी, हमारे घर के हालात तुम्हारे घर से बहुत मुख्तलिफ है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ लोग रात को घर से बाहर नहीं रहती। मेरी फैमिली और कंजर्वेटिव है, भाभियाँ कुछ और मसाज रखती हैं, उन्हें पहने की ये सब पसंद है, तो वो उस पर बातें करेंगे, नारो परेशान होगी और मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। आप एक काम कीजिए, उसे रहने दीजिए, कल मैं उसे छोड़ में आऊँगी। अगर आपकी भाभियाँ कुछ कहेंगी उन्हें मैं आपको जवाब दूँगी। जो लोग आपके किरदार पर बात करें इनका मुंह तोड़ना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। दुनिया किसी भी हाल में जी खुश नहीं रहती, इसलिए दुनिया के मुताबिक नहीं अपने मुताबिक चलिए। अगर आपको मुझ पर भरोसा है प्लीज़ उसे रहने दीजिए, परीजे ने कहा। तो कुछ पल के लिए खामोशी के बाद आलियान ने इजाज़त दे दी। परीजे का चेहरा खुशी से खिल उठा और मुतमईन से लेट के
मानो कमरे से निकल के किचन में आई तो उसने कॉफ़ी का सामान तलाश करना शुरू किया, मगर उससे कोई भी चीज़ नहीं मिली, बल्कि उल्टा वहाँ हर चीज़ इस कदर मुख्तलिफ थी कि उसे बॉक्स खोलना भी मुश्किल हो रही थी। कुछ कोशिशों के बाद जब उसने बॉक्स खोला तो एक एक चीज़ को देखना शुरू किया, मगर इसे फिर भी कॉफ़ी का सामान न मिला। वो जंजला कर फ्रिज की जाने पड़ी और इसमें से दूध निकाल कर चूल्हे पर रख दिया, पत्ती और चीनी डाले और चाय बनाने लगी। रेशमा, मेरे लिए एक कप बना दीजिए, जरा स्ट्रॉन्ग से बनाइएगा, मिशन में बहुत ज़्यादा दर्द है। पीछे से एक बारी आवाज़ सुनाई दी, तुम हड़बड़ा कर मिले। वो अफनान मलिक था, फरीसे का भाई। आप कौन? शख्स ने एकदम से पूछा तो मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने लगी। अरे भैया, ये मेरे दोस्त है मारू। इससे पहले वो जवाब देती फरीसे ने कहा, ओह आई एम सो सॉरी, मैंने इन्हें रेशमा समझ लिया। माथा मसलते वो पलट गया। उसके चाहते ही उसने अपनी रुकी सांसें बाहर की। तुम्हारे दोस्त भाई से बात हो गई है, रात यही रुक रही हो, अचानक से फरीसे ने कहा। मारो हैरानी से बोली, सच में? उन्होंने मान लिया? हाँ, मान नहीं पड़ा। मैंने उनको इस अंदाज में समझाया कि वो इनकार ही नहीं कर सके। फरीसे ने फ़ख्र से कहा। मारूफ ने कुछ लम्हों के लिए हैरानगी से फरीसे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई कमाल है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कल मेरे घर पहुँचते ही भाभियाँ मेरा पोस्टमार्टम ना कर दें। फरीसे हंसते हुए बोली, अरे फिक्र ही ना करो, कल मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊँगी, फिर देखते हैं तुम्हारी भाभी क्या कहती हैं। मारूफ भी मुस्कुराते हुए मजीद पूरा करने लगी। फिर चाय डालकर फरीसे की तरफ मुड़ी। ये थी क्यों? फरीसे ने हैरत से पूछा। वो तुम्हारे भाई के सर में दर्द था, उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दो, मैंने बना दिया इनके लिए भी। उसने कहा तो फरीसे ने सर हिला दिया। चलो ऐसे करो, बाहर लाउंज में बैठकर ही चाय पीते हैं, फिर अपने कमरे में चलते हैं वापस। फरीसे ने ट्रे पकड़ते हुए कहा और बाहर आ गए, जहाँ अफनान स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। अरे क्या हुआ भैया, कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो? फरीसे ने पास आकर पूछा। मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया, ऊपर से मुझे शो करने के लिए निकलना है, बस दिल नहीं जा रहा आज। वो मकथा में थके थके लहजे में बोला, फुल्ला आप भी ना कमाल करते हैं भैया, छोड़ दें आप शो आज, आपकी जब तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत की तरफ देखिए और शो ज़रूरी थोड़ी है। फरीसे ने कहा, नहीं छोड़ सकता कोई यार, तुम अच्छी तरह से जानती मैं सब इत्मीनान दिल के लिए करता हूँ, मुझे बहुत सुकून होता है जब वहाँ जाऊँगा तो फिर मैं खुद बहुत फ्रेश हो जाऊँगा, डोंट वरी। वो बोलते जल्दी से नील चेक करती हूँ, का मग लगे उसे लगा, वाह बहुत मज़ेदार चाय, मुझे तो लगता है ये चाय मेरे लिए एनर्जी का काम करेगी। हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। उसकी मुस्कुराहट से मारूफ के दिल में बीट मिस करती। वो आरजी अफनान मलिक, उसका लहजा ही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी में भी जान था। फरीसे ने इसकी जान देखा, फिर कहा, भैया अगर आप शो पर जा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा आराम कर ले, फिर जाना, ये चाय आपको तवानाई देगी। नान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम तो बड़ी समझदार हो गई, मन बात सुनकर लगता है कि मैं बाकी 1 घंटा आराम कर लूँ। मारूफ ने इनकी बात सी सुनी और दिल ही दिल में सोचा कि फरीसे की भाभी को भी अफनान की नरम मिजाजी और गले तन का इलव करना चाहिए कि वो चाय की खुशबू में डूबी हुई इनकी बातों को सुन रही थी। जब फरीसे ने अचानक मॉम डैड की शादी को 30 साल होने वाले हैं तो इस बार 5 साल पहले वाली पार्टी रखी। फरीसे ने पूछा। बिल्कुल, ये तो मैं पहले ही सोच चुका हूँ, अपने मखसूस धीमे और संजीदा लहजे में बोला। मारूफ ने इनकी गुफ्तगू को सुना और सोचा, कितने खुशकिस्मत है ये लोग, इन्हें एक दूसरे का साथ मिलता है, इसके घर में इसकी अपनी ही बात करके राजी रही। वैसे भैया आपकी शादी करें? फरीसे की बात पे चौंक गई। हाँ पता है भैया, पता है मारूफ, भैया ना शादीशुदा ना होने के बावजूद खुद को शादीशुदा कहलवाते हैं। पता है क्यों? ताकि लड़कियां इनके पीछे ना। और जानती हो, मैं एक बार ये भी कह रही कि इनकी बीवी बहुत ज़्यादा इनको सख्त मिजाज समझती है, बस वो लड़कियों से दूर रहने का कहती है, तो वो मानते नहीं है, बस अब लड़कियाँ फ़ोन ही नहीं कर। फरीसे हंसते हुए बोले जा रही थी और वो भी मुस्कुरा दी। चाय पीने के बाद अफनान उठकर अपने कमरे में चला गया। मारूफ और फरीसे भी अपने कमरे में वापस आ गई। फरीसे ने अचानक सवाल किया, तुम अपनी भाई के शो सुनती हो? मारूफ ने थोड़ी हैरानी से जवाब दिया। फरीसे ने थोड़ी हैरानी से जवाब दिया, एक बार सुनने की कोशिश की थी, मगर मुझे इतनी नींद आती है उनकी बातें सुनकर, वो फनहा मैं तो नींद से पागल हो जाती हूँ, पर ये इसे ने एक मजाक करते हुए मुँह बनाया। मारूफ हंस कर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फरीसे की नींद में जाने के बाद वो धीरे से उठकर सोफे पर बैठ जा बैठी। वो कानों में हैंड फ्री लगाकर अफनान मलिक को शो सुनने लगी। अफनान अपने मखसूस अंदाज में शायरी पढ़ रहा था। ये वही शायरी थी जो मारूफ ने उसे भेजी थी। 2 साल पहले मारूफ ने अफनान का शो सुनना शुरू किया था। उसकी मुनफरिद अंदाज की वजह से वो उसकी फ़ैन बन गई। उसने अफनान के बारे में सर्च किया तो उसे सिर्फ फेसबुक पर अफनान मलिक के नाम से एक आईडी बनी, मगर इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। आज उससे पहली बार पता चला कि अफनान न सिर्फ एक मशहूर आर्ची है बल्कि एक बड़ा बिजनेस फैन भी है। मारूफ पिछले 2 साल से न सिर्फ अफनान की फ़ैन थी बल्कि अपनी शायरी भी अफनान को बेचती थी, जिसे अफनान अपने शो में शामिल करता था। वो एक सीक्रेट फैन के नाम से मशहूर थी और आज भी उसने एक गज़ल भेजी जो अफनान अपने शो में पढ़ा था। शो ख़त्म होने के बाद मारूफ ने मोबाइल साइड पर रखा और सोफे पे नींद दराज हो गई और अफनान मलिक के मुतल्लिक़ ही सोचने लगी और उससे फिर से हंसी आई कि वो इतनी संजीदगी से अपने शादीशुदा होने का झूठ बोल रहा था और कोई भी लड़की उसे जानती तक नहीं थी कि वो शादीशुदा नहीं है। वो बेइख्तियार फिर से उसके बारे में सोची जा रही थी और सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अगले दिन वो जब मारिफ जाने के लिए निकल रही थी तो उसने देखा कि अफनान लॉन में एक्सरसाइज कर रहा है। अफनान ने उसे देखा और बोला, अरे आप ऐसे कैसे जा रहे हैं, नाश्ता करके चाहिए जाना। मारूफ ने जल्दी से कहा, नहीं मैं लेट हो जाऊंगी, भैया मेरा इंतजार करेंगे, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए घर से तैयार होकर निकलना है, भैया को नाश्ता देना है। फरीसे ने मुँह घुमा कर कहा, ये क्या बात हुई, तुम्हारी 2 भाभी हैं, वो नाश्ता नहीं बना सकती। मारूफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक भाभी प्रेग्नेंट है, इनसे कोई काम नहीं होता, दूसरी भाभी के 2 छोटे बच्चे हैं तो भी बच्चों के साथ लेके रहती है, भैया भी किसी से कुछ नहीं कहते, डॉक्टर भी उन्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ ही खाना पसंद है। फरीसे ने चहकते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी तरफ से नाश्ता कर लूँगी, फिर हम दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी चलेंगे, कैसा आइडिया है? हाँ ठीक है चलो, मारूफ ने कहा। फिर वो घर के पोर्च की जानब बढ़ गए। कुछ देर में वो मारूफ के घर पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई तो मारूफ की भाभियों ने इसे देखा और बड़ी भाभी ने तंजिया अंदाज में कहा, लो आ गई आपकी बहन, न जाने पूरी रात कहाँ गुजारी, यहाँ कुछ कहो तो बुरा बन जाता है। पर इसे को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने मारूफ का दिफा करते हुए कहा,
کیوں کہیں کہ آپ اس سے کچھ، یہ اس کی زندگی ہے، یہ جہاں چاہے جائے. اور آپ کے بھائی کو بھی پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رات گزار رہی ہے. میں نے خود وعدہ کیا تھا کہ صبح اسے چھوڑنے آؤں گی اور میں یہاں ہوں. ملک ہو اس کو چھوٹا گھر نہیں ہے. ہم مہمانوں کا بہت خاص خیال رکھا رہتا ہے. معروف کے بھائی جو قریب کھڑے تھے حیران ہو کر بولے آپ زبیر ملک صاحب کی بیٹی ہیں؟ پریزی نے سنجیدگی سے کہا جی ہاں میں زبیر ملک صاحب کی بیٹی ہوں، پریزی ملک ہوں. یہ سن کر معروف کے بھائیوں کی آنکھوں میں حیرت چھا گئی. انہوں نے فوری طور پر مہمان نوازی کا انداز بدل دیا. ارے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تشریف رکھیے. سکینہ جلدی سے کچھ اچھا کھانا پینے کا انتظام کرو، وہ بولے اور بھابھیوں نے فوراً کچن کا رخ کیا. پریزی اور معروف اپنے کمرے میں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد آگے اندر آیا. وہ تنزیہ انداز میں بولا اوہ تو یہی وجہ تھی بھائی صاحب اور بھابھی جان کے چہرے سے مٹھاس ٹپک رہی تھی. اچھا صبح سے پریشان کیا ہوگا، لیکن آپ نے بات سکتے ان کا جیسے آپ کو پتا ہے نا یہ ساری مہمان نوازی کیوں کر رہی ہے تاکہ آپ ہمیں بھائی صاحب کی تعریف کریں، ان کا پروموشن کروائیں. آلیان کے لہجے میں تلخی تھی جو ماہر معروف کو سمجھ گئی کیونکہ اس کی بھابھیوں نے کبھی اسے خاطر میں نہیں رکھا تھا. آج جب انہیں پتا چلا کہ اس کی دوست مہر انڈسٹری کی آنر کی بیٹی ہے تو سب اس کے آگے بچھ گئی تھی. معروف خاموشی سے آلیان کی باتیں سن رہی تھی. پریزی نے فوراً جواب دیا آلیان آپ کو بھی غلط فہمی دی ہے، میں یہاں صرف معروف کے لیے آئی ہوں. پروموشن کی بات میں میرا کوئی حق نہیں ہوگا. میں یہاں کسی کی سفارش کرنے نہیں آئی بلکہ صرف دوست کی حیثیت سے آئی. ویسے میرے تھرڈ بھیا میرٹ کی بنا پر جو پروموشن دیتے ہیں، آپ کے بھائی کو پروموشن ملنا ہوا تو میری وجہ سے ہی ان کی کارکردگی سے ملے گا. آلیان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا خیر کوئی نہیں، باس کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کروائیے اپنی خدمت ہے، میں تو جا رہا ہوں. وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولتا پلٹا ہی تھا کہ معروف نے اسے پکارا آپ بھی ناشتہ کر لیں. معروف نے کہا نہیں تم اپنے دوست کی وجہ سے ناشتہ کرو، میں تو نہیں کروں گا. تمہیں پتا ہے میں کسی کا احسان نہیں دیتا نہ رکھتا ہوں اور تمہارے علاوہ کسی کا احسان دینا پسند بھی نہیں کرتا اور ایسے لوگ بولتا تو بالکل بھی نہیں. آلیان تلخ لہجے میں بولتا وہ پاہی کر کیا اس حجی بات میں یار کسی کے ساتھ بھی اچھا رہتا کیا؟ پریزی نے چڑ کر کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا بھائی بہت اچھا تھا، جانتی ہو ان کی منہ قصہ بھی تھی میری کسی بھابھی کی بہن سے. نظر اس کو بھیا کو چھوڑ دیا. معروف نے کہا کیا سچ میں؟ پریزی حیرت سے بولی اس کی بہن نے آلیان کو چھوڑ دیا ہے. معروف نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ہاں ان دونوں کی ممی بچپن سے ہی طے تھی. بھابھی کی بہن بیٹا بہت خوبصورت تھی. شروع میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب تھے، بھیا اسے دل سے چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی جدا کو یہ معلوم ہوا ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں رہیں گے اور شاید دولت میں وہ اسے کچھ بھی نہیں دے سکیں گے جس کی اس کی خواہش تھی، اس نے بھیا کو چھوڑ دیا. پریزی نے انداز میں پوچھا لیکن کیا واقعی صرف دولت کی خاطر چھوڑ گئی؟ ہاں یہی وجہ تھی. جدا کو ایک بزنس مین آدمی نے پرپوز کیا تھا، اس نے فوراً اس کے لیے ہاں کر دی. بھیا کو یہ بہت برا لگا، اسے دل سے چاہتے تھے لیکن اس کے جانے کے بعد وہ بدل گئے. معروف کی آنکھوں میں دکھ صاف جھلک رہا تھا، اسی لیے شاید وہ اتنا طرح ہو. پریزی نے آہستہ سے کہا. معروف نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں بھیا آپ کسی پر اعتماد نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ صرف دولت کی بنیاد پر رشتے بناتے ہیں. پریزی نے تسلی دیتے ہوئے کہا لیکن تم فکر نہ کرو تو بس وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. شاید تمہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان کا اعتماد بحال کر سکے. معروف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا شاید، لیکن فی الحال وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دے. پریزی نے سوچتے ہوئے کہا ہمیں انہیں سمجھنے کا موقع دینا چاہیے. ہر کوئی اپنے درد کو الگ سے جھیلتا ہے اور وہ اس طرح دکھ جیل میں ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا وہ آگے بڑھیں گے. ان فکر مت کرو، ان کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی آئے گی جو نہ صرف ان کے درد کو سمجھے گی بلکہ وہ اپنا درد بھی اس کے ساتھ بانٹے گی. پریزی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. اس نے اولے سے اس بات میں ہلا دیا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں یونیورسٹی پہنچی. اپنی کلاسز لینے کے بعد معروف نے کمپیوٹر کلاس کا رخ کیا جہاں ہمیشہ کی طرح وہ کمپیوٹر پر نہ جانے کون سی راز و نیاز کر رہا ہے. معروف اپنے کمپیوٹر پر بیٹھی اور اس نے جی میل کھول کر آلیان پہ ایک پیغام بھیجا. ایسے انسان کو کبھی کبھار اپنوں کے لیے ہنس دینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ہنسی کسی کے لیے انرجی کا کام کرے اور ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی ہنسی پر جان چھڑکتا ہو. آپ کی بہن آپ کی قیمتی دولت ہے، آپ کا دکھ اس کی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے. بہنوں کو ٹک نہیں دینا چاہیے. آلیان نے ای میل پر سنجیدگی سے معروف کو دیکھا اور پھر جواب دیا تمہیں میری زندگی میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے مس ملک؟ میری بہن مجھے پتا ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، سو پلیز اپنے کام سے کام رکھو. اس کے منہ کے جواب کو دیکھ کر معروف نے خوشمکین نگاہوں سے آلیان کی طرف دیکھا اور جواب میں لکھا سوری میں تو بھول گئی تھی کہ میں ایک بے حس انسان سے بات کر رہی ہوں. آپ جیسے لوگ صرف اپنے متعلق سوچتے ہیں، دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے اس سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جیسے لوگوں سے کسی اچھائی کی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے. جو اپنی بہن کے لیے نہیں سوچ سکتا وہ کسی اور کی عزت کیا کرے گا. اوکے بھائی یہ کہہ کر لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر باہر نکل گئی. آلیان نے سر ہلایا. وہ تو ہے سمجھتی کہ حبت کو ہر بار خود ہی ناراض ہو جاتی، خود ہی مجھ سے الجھ جاتی ہے، خود ہی ناراض ہو جاتی ہے جیسے میں اسے جا کر مناؤں گا. وہ چڑھتے ہوئے سوچتا جا رہا تھا اور اسے انتہائی غصہ تھا اس پر اور دل چاہ رہا تھا اس کا جا کر ابھی منہ توڑ دے، مگر فی الحال اس نے خود کو روک لیا. شام کو ہنستے عادت وہ ٹیوشن پڑھا کر گھر پہنچا اور معروف سے کھانا لانے کو کہا. معروف کھانا دینے کے بعد ہمیشہ کی طرح صوفے پر چپ چاپ بیٹھی تھی. ملک ہاؤس گئی تھی تم، کیسا لگا ان کا خاندان؟ آلیان نے سوال کیا. میری توقع کے بالکل برخلاف. مجھے لگا ان کی والدہ بہت مغرور ہوں گی یا ان کے والد اتنے امیر ہونے کی وجہ سے شاید پارٹیز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہوں گے، لیکن وہ سب بہت مختلف ہیں، بہت سادہ اور خوش مزاج لوگ ہیں. اکٹھا بیٹھ کر کھاتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. میرے دل میں تو حسرت جاگ رہی تھی کاش ہم بہن بھائی بھی اس طرح بیٹھا کرتے، مگر اب تو جیسے یہ سب خواب ہو گیا. معروف نے کچھ دیر توقف کے بعد کہا میں سوچ رہی ہوں کوئی جاب کر لوں، یونیورسٹی کے بعد سارا دن ایسے ہی بور ہو جاتے ہیں. آلیان نے اس کی بات پر شرمندگی محسوس کی اور کہا آئی ایم سوری گڑیا، ایک کام کرتا ہوں میں جس اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں وہاں تمہارے لیے جاب کی بات کر لیتا ہوں، پھر ہم دونوں اکٹھے جایا کریں گے. ویسے اگر تم چاہو تو FM 104 پر ایک شو بھی کر سکتی ہوں، میرا ایک دوست ہے آصف، اس کا ریڈیو اسٹیشن ہے. معروف نے خوشی سے کہا جی بھیا FM پہ بات کر دیجیے، میں بہت شوق سے کام کروں گی. آلیان نے آصف کو کال کی اور اگلے ہی دن اس کا انٹرویو فکس ہو گیا. آصف نے انٹرویو کے بعد اسے فوراً ہی کام پہ رکھ لیا اور بتایا کہ یہ شو ہمارے ایک عارضی کیا کرتی تھی، لیکن اب یہ شو آپ کریں گی اور آپ کے ساتھ افنان ملک ہوں گے. افنان کا نام سن کر اس کی دھڑکنیں بے قابو ہوگی.
उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि अफनान के साथ इतने करीब से काम करने का मौका मिलेगा। अगले दिन जब वो एफएम की स्टूडियो पहुंची तो उसे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। अफनान पहले ही मौजूद था। जब उसकी नज़र मारूफ पर पड़ी तो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। तुम यहाँ? अफनान ने हैरानगी से पूछा। जी, मेरा आज पहला दिन है, मारूफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अफनान ने सर हिलाया और अपने काम में मगन हो गया। शुरू होते ही अफनान की आवाज़ में वही पुराना जादू था, लेकिन अब उसके साथ मारूफ भी थी। उसकी मौजूदगी ने शो को और दिलचस्प बना दिया था। मारूफ अपनी इस नई जिम्मेदारी को लेकर बहुत पुरजोश थी। अफनान के साथ काम करने का तजुर्बा न सिर्फ पेशा वाराना तौर पर बेहतरीन था, बल्कि इससे मारूफ को अफनान की शख्सियत को करीब से जानने का मौका भी मिला। इन दोनों के दरमियान जो बातें शो के दौरान होती थी वो कभी कभी शो के बाद भी जारी रहती। एक दिन शो के बाद जब दोनों स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे, अफनान ने मारूफ को मुखातिब करते हुए कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आता है, तुम्हारी मौजूदगी से शो में एक अलग ही तवानाई आती है। मारूफ ने ये तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया सर, ये आपकी रहनुमाई का नतीजा है। दोनों के दरमियान ये नरमी और इज्जत बढ़ती जा रही थी, लेकिन मारूफ के दिल के जो एहसास जन्म ले रहे थे वो कुछ और ही थे। इसके दिल में अफनान के लिए कुछ खास जज्बात पैदा हो चुके थे, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये महज पेशा वाराना एहतराम है या उससे कुछ ज़्यादा है। मगर एक बात सच थी, उसे अफनान का साथ बहुत अच्छा महसूस होता था। इसका चूंकि हफ्ते में 3 शो होने थे तो आज उसे छुट्टी थी, प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करना था। मारूफ ने फरीज़े को फ़ोन किया और उसे अपने घर बुलाया तो उसमें उसके घर में जाकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर ही रही थी कि अचानक से फरीज़े ने चाय की फरमाइश कर दी। फिर खुद भी इसके साथ किचन की जाने पड़ी। इसी वक्त फरीज़े ने आलियान को देखा जो घर में दाखिल हो रहा था। आलियान की पेशानी पर शिकने थी। वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। फरीज़े ने इसका अंदाज देखा तो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए मारूफ को कहा कि वो अकेले चाय बनाने चली जाए। मारूफ तो चली गई, लेकिन फरीज़े का दिल चाहा कि आलियान से थोड़ा उलझा जाए, क्योंकि वो अक्सर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करता था और ये बात फरीज़े को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे जनाब, बड़े गुस्से में लग रहे हैं आज, क्या हुआ? कोई नया मसला? फरीज़े ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहा। आलिया ने बिना इसकी तरफ देखे कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो, और हाँ, किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले उसे नॉक करना चाहिए, इजाज़त मिले तो फिर अंदर दाखिल होना चाहिए। इतने भी नहीं मैनर्स तुम्हारे अंदर। वो हंस आदत चिढ़ चुका था। ऐसे कैसे रखो अपने काम से काम? वैसे मैनर्स की बात की उसने जिसे खुद मैनर्स का नहीं पता कि घर आए मेहमान से कैसे बात करते हैं। फरीज़े ने जलकर कहा। आलियान ने रुककर उसे गुस्से से घूरा। तुम हमेशा उलझने के बहाने ढूंढती हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? फरीज़े ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, मसला मेरे साथ नहीं तो हाँ आपके साथ है। आप हमेशा इतने तलक के रहते हैं, ना किसी से अच्छे से बात करते हो, ना हंसते हो, कि ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ नहीं रख सकते? आलियान ने सर झटकते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में जानते क्या हो? हर वक्त तंज करती रहती हो, जैसे तुम्हें सब कुछ पता है, और आपको तो लगता है दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल आपकी ज़िंदगी है। हाँ, फरीज़े ने तंज़िया अंदाज में कहा। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखो, लोग कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं, लेकिन वो कम अज़ कम दूसरों के साथ नॉर्मल बात तो कर सकते हैं। आलियान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं? हर किसी की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, लेकिन ये तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हें किसी और की फिक्र ही नहीं। फरीज़े ने तलखी से कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं क्यों आपकी फिक्र करूँ? आप खुद को हमेशा मजलूम समझते हो, दूसरों की तकलीफ नज़रअंदाज करते हो। आलियान ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, बस अब और बहस नहीं करनी, मैं थक गया हूँ तुम्हारी इन बातों से। ओह, तो आपको थकावट भी होती है? फरीज़े ने तंजन कहा, शायद इसीलिए तुम कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। आलियान ने झंझलाहट में हाथ हवा में लहराया और परी को नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे से निकल गया। फरीज़े ने उसे जाते देखा और खुद भी गुस्से में पलटकर बाहर निकल गई। ये शख्स कभी नहीं बदलेगा। वो सीधे लब बोली, बस अपनी दुनिया में मगन रहता है। वो चिड़ी जा रही थी। इस तलखी के बाद दोनों ने काफ़ी दिनों से एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर फरीज़े को काफ़ी एहसास हो रहा था कि वो उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल गई। वो कंप्यूटर की क्लास में आई और उसकी तरफ देखने लगी, जो कि हमेशा की तरह मसरूफ़ था। कैसे बात करूँ, सॉरी कैसे कहूँ? पहले इसको जब मैं बात करने लगती हूँ ये तो उखड़ जाता है। वो उसे देखते हुए सोचेगी। फिर इसने पास पड़े पेपर पैड से एक पेपर निकाला और अपने बैग से रेड मार्कर निकालकर एक इमोजी बनाया और नीचे सॉरी लिखकर उस कागज़ को क्लास खत्म होने के बाद उसकी बैग के नीचे रखकर वो बाहर की जाने बढ़ गई। वो घर आकर अपने बैग से डायरी निकाल रहा था कि उसके साथ एक कागज़ निकलकर पैरों में गिरा। आलियान ने झुक कर उठाया तो इस पर एक रोने वाला इमोजी बना था और नीचे एक डायरी लिखी थी, सॉरी उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। इसके लब हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने वो कागज़ अपनी अलमारी में रख दिया और मारूफ को लेकर उसे स्टूडियो छोड़ा और खुद अकेडमी चला। अगले दिन वो कंप्यूटर क्लास में बैठा उसी का मुंतज़िर था, मगर वो नहीं आई। वो न जाने क्यों बेचैन सा हो गया। फिर बाद में कैंटीन में आया, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। मारूफ की क्लास में चढ़ाया, मगर मारूफ अकेले बैठी थी। वो दिल ही दिल में झंझला सा गया। फिर दोपहर में जब मारूफ उसे खाना देकर वापस पलट रही थी तो उसने उसे रोका। जी भैया, उसने पास आकर पूछा। वो तुम भी खाना खा लो? वो बोला, मैंने खा लिया था, आप खाओ, मैं चाय बनाती हूँ। मैं कहते हुए पलटी, अरे तुम्हारी पढ़ाई कैसे जा रही है? उसने फिर से उसे रोकते हुए पूछा। आपने आज क्लास में आकर भी ये पूछा था भैया, तब बताया तो था। खैरियत तो है, कोई और बात है क्या? मारूफ ने पूछा। नहीं, और कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने ये पूछना था, वो तुम्हारी पागल दोस्त क्यों नहीं आई? वो जल्दी से बोला तो वो तअस्सुफ से देखते हंस पड़ी। वो उसकी मॉम डैड की एनिवर्सरी पार्टी है परसों, वो उसी की तैयारियां कर रही हैं। वो बोली, ओ मतलब कल भी नहीं आएगी? उसने चौंक कर पूछा। तो उस रस बात में हालांकि तुमने गिफ्ट खरीदी है उसके मॉम डैड के लिए? उसने अचानक से पूछा। नहीं, और मैं जा नहीं रही। तो क्यों लेना गिफ्ट? वो इत्मीनान से बोली। तो वो चौंक गया, क्यों नहीं लेना? और तुमने जाना क्यों नहीं है? क्या उसने इन्वाइट नहीं किया? उसने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। उसने तो इन्वाइट किया है, लेकिन मैंने ही उससे माजरत कर ली। मैंने किसके साथ उस टाइम जाना था पता है? रात को इशा की बात है, और फिर आपने मुझे बोलना था कि इतनी लेट हो जाना, बस फिर मना कर दिया। वो आहिस्ता से बोली, उफ तुम पागल हो क्या? फ़ौरन उसे कॉल करो और उसे कहो, नहीं बल्कि रहने ही दो, कॉल ना करना।
ऐसा करो हम कल गिफ्ट लेंगे, फिर उसे सरप्राइज देंगे पार्टी में जाकर। वो जल्दी से बोला। तो वो आंखें फाड़े बेयकीनी से उसे देख रही थी। फिर अगले दिन आलिया ने उसे लेकर गिफ्ट ले आया, जो कि एक ब्यूटीफुल सा फोटो फ्रेम था। फिर वो मारूफ के साथ पार्टी पे पहुंचा। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए थे, अफनान ने उनका इस्तकबाल किया। फिर वो उन्हें लेकर मिस्टर एंड मिसेस मलिक के पास आ गया। उन्हें गिफ्ट देकर एक कॉर्नर वाली टेबल पर आकर बैठ गया। मारूफ के सब क्लास वालों इनको देखकर चैम मुहैया कर रहे थे। वैसे तुम लोग क्या गिफ्ट लाए? एक ने पूछा। अरे लाए होंगे कोई 100-200 का अपनी लोकल मार्केट से। अरे इनकी कौन सा औकात है बहुत ज्यादा महंगे गिफ्ट देने की। मारूफ की क्लास फेलो ने कहा तो उसे तो सब कहा लगा कर हंस पड़े। आलियान को इंतहाई सबकी का एहसास हुआ। तुम यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ। वो कहते हुए मुड़ा तो पीछे खड़ी परीजे से टकराते टकराते बचा। रियली सोफिया, ये बात तुम कर रही हो? जिसने गिफ्ट भी नहीं दिया। तुम्हारी मॉम डैड लाए हैं ना, तुम नहीं लाए। ये लोग तो फिर अपने पैसों का कोई गिफ्ट लाए हैं और बड़े इखलास से लाए हैं। परीजे की बात सुनते ही सबका यह कहा अचानक रुक गया, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। सोफिया जो चंद लम्हे पहले हंसी में डूबी थी, अचानक खामोश हो गई और शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगी। परीजे ने नजरें उस पर जमाई रखी और उसके चेहरे पर मजबूती और एतमाद था। उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत की कि यहाँ आकर कुछ अपने दिल से पेश किया। तुम लोग सिर्फ बातें बढ़ाना जानते हो। परीजे के लहजे में न सिर्फ गुस्सा बल्कि उसकी बातों में सच्चाई की चमक थी। आलिया ने हैरानी से परीजे को देखा, जैसे उसका ये मजबूत और फैसलाकुन रवैया उसके लिए नया हो। वो जो चंद पल पहले सुबह की और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, अब उसकी आंखों में एक नई रोशनी नजर आने लगी। सोफिया ने नजरें नीचे कर ली और धीरे से बोली, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब जो भी था सोफिया, ये बातें करना जरूरी नहीं था। हर किसी की अपनी हैसियत होती है और ये दिल की सच्चाई है जो अहम होती है, कीमत नहीं। परीजे ने उसकी बात काटते हुए कहा। माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो सारे लोग जो अभी तक मारूफ और आलियान पे तंज कर रहे थे, अब खामोशी से परीजे की बातों को सुन रहे थे। आलिया ने एक पल के लिए मुस्कुराते परीजे की तरफ देखा, जैसे वो इस लम्हे को अपनी याददाश्त में महफूज कर रहा था। वो जानता था कि इस लम्हे में परीजे ने न सिर्फ सबकी बोलती बंद कर दी है, बल्कि उसके दिल में अपनी जगह भी और ज्यादा पुख्ता कर ली थी। परीजे ने मुस्कुराते हुए आलियान की तरफ देखा और नरमी से बोली, चलो बैठो, इन लोगों की बातों को दिल पे मत लो। तुमने जो भी किया वो दिल से किया, यही काफी है। आलिया ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ इसके दिल से हट गया हो। वो खामोशी से आकर परीजे के साथ बैठ गया। उसने महसूस किया परीजे ने न सिर्फ उसका साथ दिया, बल्कि खुद इसकी जिंदगी में एक खास मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो लड़की कोई बिगड़ी अमीरजादी नहीं थी, वो सच में एक मुखलिस लड़की थी। उसने पहली बार उसका भरपूर जायजा लिया, जो कि मारूफ का हाथ थामे उसका तारुफ सबसे करवा रही थी। फिर उसने अपनी मॉम और डैड के लिए एक डांस परफॉर्मेंस दी। वो इस कदर महारत से डांस कर रही थी। फिर कुछ देर के बाद जब वो अकेली खड़ी थी तो वो उसके पास आया। आई एम सॉरी, कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला तो वो बेयकीनी से देखने लगी। इट्स ओके, वैसे भी आप सॉरी बोले या ना बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सर झटक कर बोली। आलिया ने परीजे की बात सुनी, लेकिन मजीद खुद को कुछ कहने के काबिल नहीं समझ रहा था। उसे कह तो चुका था कि सॉरी, लेकिन ये लफ्ज़ इतना बेवजन लग रहा था जैसे इसका मतलब खुद ही खो चुका हो। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। परीजे ने एक लम्हे के लिए अपनी नजरें आलियान पर जमाई, जो कि चुपचाप खड़ा था। फिर वो उसकी खामोशी से चिढ़कर बोली, आप हमेशा बातों को इतना मुश्किल क्यों बना देते हैं? आप कोई और बात करें जिससे सब ठीक हो सके। आलिया ने बेचैनी से अपनी जेब में हाथ डाले और धीरे से कहा, शायद मैं नहीं जानता कैसे ठीक करना है। परीजे ने सर झटकते हुए जवाब दिया, बात ये नहीं कि आपको मालूम नहीं होता आलियान, बात यह है आप कभी वक्त पर कोशिश ही नहीं करते। इसके लहजे में हल्की सी मलामत थी। आलिया ने नजरें उठाकर परीजे की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं वाकई समझने में देर कर रहा हूँ। परीजे ने अपने होंठ भींच लिए, कुछ देर खामोश रही और फिर आहिस्ता से बोली, मसला ये नहीं आप माफी मांग रहे हैं, ये नहीं, मसला ये है कि आपको हमेशा देर हो जाती है और आप हर बार आपकी ये देर किसी न किसी रिश्ते को मजीद दूर कर देती है। आलियान की खामोशी गहरी होती चली गई। परीजे ने उसे एक आखिरी नजर से देखा और फिर धीरे से कहा, खैर अब जो हुआ वो नहीं बदला जा सकता, आप चाहिए, मैं ठीक हूँ। आलियान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके अल्फाज जैसे हलक में फंस गए। उसने परीजे की तरफ देखा जो अब वहां से दूसरी सिमत जा रही थी। वो बोझल दिल से जाकर टेबल पर बैठ गया। उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो वहां पर रुके, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मारूफ के लिए वहां ठहर गया। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी आए तो परीजे आई हुई थी। वो पास गया, माही मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, तुम वहीं पर आ जाना, वो कहती हुई वहां से चली गई। फिर कंप्यूटर क्लास में भी उसने खिलाफे तवक्को कोई पंगा ना लिया तो वो दिल ही दिल में झंझला सा गया। फिर क्लास से जब सारे स्टूडेंट चले गए, वो उठकर पास आया तो वो तेजी से उठकर बाहर जाने लगी, मगर वो जल्दी से दरवाजा बंद करते उसके आगे खड़ा हो गया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? वो सुलगते लहजे में बोला, हटिए पीछे, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो तब कर बोली, आई एम सॉरी अगेन, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा ऐसा, दोस्त बन जाते हैं। आनियान ने कहा तो उसने बेयकीनी से देखा, मुझे नहीं करनी दोस्ती। वो ना रूठे अंदाज में बोली, प्लीज आई एम सॉरी, देखो मैंने तुमसे इतनी बार सॉरी बोला, दोस्ती के लिए ऑफर की, जबकि मैं लड़कियों से भागता हूँ। वो जल्दी से बोला, मुझे नहीं करनी दोस्ती, अगर कल आपने दोस्ती से आके सोचा तो वो मुंह बनाकर बोले, नहीं सोचूंगा, प्रॉमिस। वो जल्दी से बोलता हाथ बढ़ा गया तो वो भी मुस्कुराते उसका हाथ थाम गए। फिर आने वाले दिनों में वो मारूफ और परीजे कई जगहों पर अकेले पाए जाते थे। उसके कई बार असाइनमेंट भी बना देता था। मारूफ तो उनकी दोस्ती होने के बाद काफी सुकून का सांस लिया था और आजकल अफनान की काफी फेवरेट हो चुकी थी। हर स्पेशल डे का शो वो दोनों इकट्ठे करवाते थे। फिर एक दिन अफनान के घर से इसका रिश्ता आया तो मारूफ की भाभियां हंस चलन से देखने लगी। उन्होंने काफी कोशिश की कि वो इस रिश्ते से इनकार हो जाए, मगर आलियान ने उसका रिश्ता पक्का करवा कर ही धम दिया। अफनान की मदर तो चाहती थी कि शादी हो जाए, मगर अफनान ने मंगनी करके उसे आजमाने का फैसला किया, क्योंकि वो पहले धोखा खा चुका था। उसे जांचना चाहता था कि ये भी इसकी दौलत के पीछे है कि नहीं। दूसरा और आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज। कहने लगा था, एक बार अफनान ने उसे जांचने के लिए कहा, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ क्योंकि उन्हें लगता है तुम भी मेरी दौलत के पीछे, लेकिन मैंने मना कर दिया तो मुझसे हर किस्म का नाता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। तुम बताओ क्या करना चाहिए? अगर मैं उन्हें छोड़ दूँ तो क्या तुम जिस जगह पर तुम्हें रखूँगा उस पर राजी रहोगी?
अफनान ने संजीदगी भरे लहजे में कहा तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। लेकिन आंटी जी, और सबकी रजामंदी से ये रिश्ता हुआ है, तो अब क्यों लगा उनको ऐसा? और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप चाहे तो परीसी से पूछ लीजिए, मुझे आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं जानता हूँ, मगर जाहिर बात है वो माँ है, तो उन्हें लग रहा है तो मैं ऐसी हो सकती हूँ। मैं पहले भी इस बारे में चोट खा चुका हूँ, इसीलिए वो थोड़ी परेशान है। तो मैंने फिर साफ कह दिया, मैं अलहदा तो लेकर रह लेता हूँ, लेकिन मैं इतनी बात कह दूँ कि ये सारी आसाइशात, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मुझे। क्या तुम मेरे साथ आम जिंदगी जी सकती हो? अफनान ने पूछा तो उसने नम आंखों से उसे देखा। मैं आपके साथ ऐसी कोई जिंदगी नहीं जी सकती जिसमें बड़ों की रजामंदी ना हो। आपके बड़े राजी नहीं हैं, आपके माँ बाप राजी नहीं है, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं अफनान? अगर उन्हें लग रहा है कि मैं आपके लिए मुनासिब नहीं हूँ, तो आपको मुझ में से और उनमें से चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए, जो वो कह रहे हैं उसी बात को मानना चाहिए। माँ बाप ने आपको पाला है, आपको पढ़ाया है, आपको इस मुकाम पर पहुँचाया है। आप मेरी खातिर नहीं छोड़ेंगे? मैं हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी। बाकी अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आज के बाद कभी आपसे नहीं मिलूंगी। वो निगाहें झुकाए बोलती जा रही थी, उसका लहजा भीगा हुआ था। क्या तुम ये बात मेरी आंखों में देखकर कह सकते हो? तुम कह सकती हो कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरे बगैर रह सकती हो? अफनान ने इसकी थोड़ी सी थामते हुए उसके चेहरा ऊपर करते हुए पूछा, तो उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और कांपते हाथों से अंगूठी उतारने लगी। सॉरी, मैं किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकती। वो नम मुस्कुराहट से बोलती उठी और तेजी से बाहर की जाने बढ़ गई। अफनान धीमी सी मुस्कुराहट से रिंग पॉकेट में डाले उठकर घर के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह उसने नाश्ते की टेबल पर फौरी शादी का फैसला किया, तो किंजा मलिक बाकी सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे ख्याल में हमें इन सबको खाने पर इन्वाइट करना चाहिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं, और जिस दिन वो कहेंगे उसी दिन हम शादी रख लेंगे। जुबैर मलिक ने कहा, ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है जुबैर साहब। मैं अभी फ़ोन करती हूँ आलियान को, कहती हूँ कि कल सब लोग यहाँ पर हमारी तरफ आए। किंजा मलिक ने कहा और फिर फ़ोन करके उन्हें इन्वाइट किया। वो सब लोग आ गए। उसकी भाभियाँ तो उसके इतने अच्छे नसीब पर झलक उड़ रही थी। फिर अफनान ने परीजे के जरिए मारूफ को कमरे में बुलाया। वो दोनों एक तरफ जा बैठे और परीजे बाहर निकल गई। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मारूफ ने अफनान की आंखों में देखा, जो कुछ कहने की हिम्मत जमा कर रहा था। अफनान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मारूफ, मुझे आपसे एक सच बात कहनी है, उम्मीद है आप समझेंगी। उसने परेशानी से उसे देखा। क्या बात है अफनान? अफनान ने नजरें नीची करते हुए कहा, जो कुछ मैंने आपसे अपने वालिदैन और दौलत के बारे में कहा था वो सब झूठ था। मेरी माँ और वालिद को आपसे कोई मसला नहीं है। दर हकीकत वो आपको पसंद करते हैं। मारूफ के चेहरे पर हैरानी छा गई। फिर आपने ऐसा क्यों किया? अफनान ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने ये सब आपको आजमाने के लिए किया। मैं ये जानना चाहता था कि आप वाकई मुझसे मोहब्बत करती हैं या फिर मेरी दौलत से। मैं ये नहीं चाहता था मुझे बाद में पछतावा हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को जगह दे दी जो मेरे पैसों के पीछे है। मारूफ कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, अफनान, मोहब्बत एतमाद का नाम है। जब आपने ये सब किया, आपने मेरे साथ नहीं बल्कि हमारे रिश्ते के साथ खेल खेला। क्या आपको लगता है कि मैं आपके पैसे के पीछे हूँ? अफनान ने पशेमानी से सर झुका लिया। नहीं, मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं गलत था। आपने जिस तरह रद्द अमल दिया उससे मुझे यकीन हो गया कि आप वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने आप पर शक किया। मारूफ ने अपनी नम आंखों को साफ करते हुए कहा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ अफनान, लेकिन एतमाद की बुनियाद पर रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे सच्चाई बता दी, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आपकी बात पर यकीन है कि मैं आपके साथ इस रिश्ते को हमेशा निभाऊंगी, अपनी वफा निभाऊंगी। लेकिन आइंदा याद रखिएगा, किसी को आजमाना रिश्ते को कमज़ोर करता है। अफनान ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। आज के बाद सिर्फ सच्चाई और एतबार होगा। मारूफ ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। बस यही चाहिए था मुझे। दोनों के दिलों में अब कोई शक बाकी नहीं था। उनके दरमियान मोहब्बत और एतमाद पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। अच्छा, मुझे याद आया कि तुम्हें कमरे में कोई तब्दीली करनी है तो बता दो। दरअसल मॉम ने कहा कि तुम्हारा भी ये कमरा होगा, तो अगर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली चाहिए तो मैं करवा दूंगा, तुम मुझे बता दो। अफनान ने उसका हाथ पकड़े रिंग पहनाते हुए कहा, नहीं, किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो आहिस्ता से बोली, ओके साहिर बाहिर हमारे शादी के दिन रखे जा रहे हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तुम तैयार हो ना इस सब के लिए? तो ठीक है, लेकिन अगर तुम आगे कुछ करना चाहती हो, तो शादी को भी आगे बढ़ाना चाहती हो, तो भी मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात कहूँगा, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हाँ, मैं ये नहीं कहता मैं तुमसे शदीद किस्म की मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगने लगा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ये जानने के बाद तो मेरी बेकरारी अब और बढ़ गई है। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बोलो क्या फ़ैसला है? वैसे अगर तुम चाहो तो जहाँ हमने इतने महीनों इंतज़ार किया, मज़ीद कुछ अरसा इंतज़ार कर लेंगे। क्या ख्याल है? अगर शादी स्टडी के बाद करनी है तो फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके झुके हुए सर को देख कर बोला, तो उसने सर उठा कर देखा। मैं अपनी स्टडी बाद में कंप्लीट कर लूँगी, वो धीमी सी मुस्कान से बोली। से मेरा अब कुछ गुस्ताखी करने का दिल चाह रहा है, लेकिन करूँगा नहीं क्योंकि हक नहीं रखता। मगर जिस दिन आप आएंगे ना यहाँ, उस दिन पूरे हक से गुस्ताखी करूँगा। वो बोला तो उसकी बात पर उसके चेहरे पर जैसे सुर्खी सी छा गई। अरे भाई, आप दोनों की मुलाकात ख़त्म हुई कि नहीं? क्या मैं अंदर तशरीफ़ ला सकती हूँ? परीसी ने दरवाजे पे खड़े होकर पूछा, तो वो गहरा सांस भरते हुए मुड़ा। जी बिल्कुल, आप तशरीफ़ ले जाइए। वैसे भी आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है ना मिस मलिक?
वैसे आप तो हर जगह बिना इजाज़त के घुस जाती हैं। पीछे से आलियान की आवाज़ आई, ओह हेलो, मुझ पे ज़्यादा तंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया और कब किसके कमरे में घुसी बताइए ज़रा। वो लड़ाका अंदाज में पीछे मुड़ते हुए बोली। तो उन दोनों ने गहरा सांस भरते हुए कंधे उचकाए, गोया ये कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों ने दोबारा लड़ाई शुरू होने वाली थी। वो दोनों इकट्ठे हों और उन दोनों की नोक झोंक ना हो, ये हो ही नहीं सकता था। इन चंद महीनों में वो चाहे एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे, मगर हर बात में वो एक दूसरे से लड़ना लाज़मी समझते थे। अफनान भाई, आप देखें ना, ये हर वक्त मुझसे लड़ते रहते हैं। पता है, कल मैंने असाइनमेंट बनाने के लिए कहा तो कहने लगे अपना काम खुद करना चाहिए, ये कोई बात है? क्या हो जाता अगर असाइनमेंट बना देते तो? वो चिढ़ कर बोले। अफनान भाई, आप खुद सोचिए, अगर ये यूं ही असाइनमेंट बनाकर सर को जमा करवा कर इतने इतने मार्क्स लेती रही और आइंदा आने वाले वक्त में ये आपकी कंपनी को ज्वाइन करेगी, तो फिर ये टोटली रिजेक्ट करती जाएगी, क्योंकि आपकी कंपनी में रिश्तेदारी और इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी जाती, और सबसे बढ़कर मेरिट की बिना पर आप रखते हैं। तो ये क्या करेगी आप खुद सोचिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी भलाई के लिए कर रहा था कि अपना काम करो। वो इत्मीनान से बोला तो वो चिढ़ गई। भलाई रहने दे, आप कोई भलाई नहीं चाहते अब मेरी। और हाँ, एक बात ना आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, मेरा मजाक मत उड़ाया करें। मैं कोई नालायक स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ूं, लेकिन क्या करूं, मैं पढ़ ही नहीं पाती। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब करूंगी ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत मुश्किल से मेरी ये मुसीबत खत्म होगी पढ़ाई की। इसके बाद तो मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले जाऊंगी, सिवाय ज़रूरत के मुताबिक। वो मुंह बसोर कर बोली, अच्छा अगर जॉब नहीं करोगी तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अरे भाई, तुम्हारे डैड इतने बड़े बिजनेसमैन है, हमारा भाई उनका एक नाम है, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। अजीब लड़की हो वैसे तुम परी से। आनियान ने कहा, करना चाहती हूँ, क्यों नहीं करना चाहती। मैं एक अच्छी सी इंसान से शादी करूंगी, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने पकाया करूंगी, सब्जी वाले से मोल भाव करूंगी, अगर मज़ेदार खाना बनाकर अपने शोहर के इंतजार में पलकी बिछाकर बैठा करूंगी, और 5-6 प्यारे प्यारे बच्चे पैदा करूंगी। उफ, क्या लाइफ होगी। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और आलियान आंखें फाड़े से देख रहा था, जबकि अफनान और मारक उसकी बातों पर तअस्सुफ से सर हिला रहे थे। उफ अल्लाह, ये तुम्हारे ख्वाब है। वैसे ठीक कहते हैं लोग, बड़ा इंसान नाशुक्र है। जिस लाइफ के लिए लोग ख्वाब देखते हैं वो छोड़कर तुम फटीचर जिंदगी जीना चाहती हो। तुम जानती भी हो, ऐसे लड़कों को तो उसके खुद का खानदान की लड़कियां ठुकरा देती हैं। उसकी खूबसूरती अच्छाई सब सामने हो जाती है दौलत के सामने। पता है, दौलत तो बड़े बड़े ऐप छुपा देती है, और जिस जिंदगी के तुम ख्वाब देख रही है ना, जब हकीकत में तुम्हारा इससे पाला पड़ेगा ना, तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। फिर तुम खुद बखुद ख्वाहिश करोगी, तुम काश की जिंदगी में कभी ये ख्वाहिश ना करती। उसके लहजे की तलखी में वो तीनों चुप हो गए। वो जानते थे मोहब्बत में खाया धोखा यूं ही तरकीब देता है। चंद दिन बाद अफनान की शादी की तकरीबात शुरू हो गई। सब लोग दोस्त रिश्तेदार की खुशी में शरीक होने के लिए जमा हुए थे। मारूफ की आंखों में खुशी की चमक थी। आज उसकी मेहंदी का जोड़ा देने आए थे। वो दोनों पर छत पर आए, जब भी अफनान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा। वो एकदम से उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाते हुए बोला, तो वो पूरी जान से कांप रही। वैसे सिर्फ 2 दिन बाकी है हमारी शादी में, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तुम खुश हो ना? उसने इसकी थोड़ी से थामते हुए पूछा। उसने निगाहें उठाए बगैर सर अस्पात में हिला दिया। वैसे खुशी किस बात की है? तुम्हें मुझसे शादी होने की या फिर दोस्त के भाई से शादी होने की है? उसने शरारती अंदाज में पूछा। तो इस बार उसने निगाहें उठाकर उसे देखा। मैं तो आपको ये शादी की रात ही जवाब दूंगी, आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा। उस दिन वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली, मतलब अब आपकी तरफ से मुझे सरप्राइज होगा, इसके लिए मुझे 2 दिन तक इंतजार करने पड़ेगा। ओ माय गॉड, कैसे गुजरेंगे ये 2 दिन? सीने पर हाथ रखते हुए बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो भी हल्की सी मुस्कुराहट से उसका रोशन चेहरे देखने लगा। मेहंदी की रात का जश्न अपने उरूज पर था। मेहंदी की खुशबू और खुशियों की आवाज़ें हर तरफ बिखरी हुई थी। मारूफ अपनी भाभी के साथ महफिल में खुलकर हंस रही, लेकिन जब अचानक उसकी नज़र रिदा पर पड़ी तो उसका मूड अचानक ख़राब हो गया। रिदा जो आलियान की साबका महबूबा होने के साथ साथ एक लालची और हासिल लड़की भी थी, उस रात मेहंदी की तकरीब में खास तौर पर आई थी। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी मौका की तलाश में हो। मारूफ ने रिदा की तरफ देख के दिल में कड़वाहट महसूस की। ये क्या कर रही है यहाँ? इससे सोचा। इसका दिल इस बात पर पोचल हो गया कि वो लड़की इसके भाई के साथ धोखा दे चुकी है। वाह, बड़ा हाथ मारा है तुमने, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम इतनी तेज हो कि अफनान मलिक को भी फंसा लिया, रिदा ने तंजिया लहजे में कहा। उसकी आंखों में जलन और हसद की चमक साफ नजर आ रही थी। मारूफ के लिए ये अल्फाज जहर के तीरों की मानी थी। इसके दिल पर जैसे भारी पत्थर आ गिरा था। एक लम्हे के लिए वो खामोश रही। रिदा के अल्फाज ने इसकी तमाम खुशियों पर पानी फेर दिया था। फिर वो मारूफ ने रिदा की तरफ मुड़कर सर्द लहजे में कहा, मैंने किसी को नहीं फंसाया, हम अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह मर्दों को फंसाने की आदत नहीं। अफनान ने खुद मुझे पसंद किया है। उसके तलख लहजे में दफा का आंसर नमाया था, जैसे वो रिदा के हर ज़ाहिर जवाब में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रिदा एक तंजिया हंसी हंस पड़ी। उसकी ये हंसी मजीद जख्मों का बाइस बनी। मारूफ ने नागवारी से सर झटका और स्टेज की तरफ बढ़ गई। उसकी नज़रें बेचैनी से आलियान को तलाश कर रही थी, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। शायद आलियान रिदा को देखकर खुद को घायल कर चुका था। वो आलियान के मुतल्लिक सोचकर हमेशा ही परेशान हो जाती थी, और आज तो उसे खास तौर पर जो है उन पर गुस्सा आ रहा था। ये मालूम था कि उसकी भाभी ने जानबूझकर रिदा को दावत दी थी, जबकि पूरे खानदान को पता था कि आलियान रिदा को पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी शक्ल देखने से भी गुरेज करता था। मारूफ का दिल जैसे बोझल सा हो गया। उसके चेहरे पर नागवारी का साया छा गया। अफनान उसकी तरफ बड़ा नरम लहजे में पूछा, क्या बात है, परेशान लग रही हो? मारूफ ने चौंक कर अफनान की तरफ देखा और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस भैया को ढूंढ रही थी। मारूफ ने जल्दी से बात का रुख बदला और परेशानी छुपाने की कोशिश की। प्लीज़ परी को बुला दें। इसने दूर खड़ी परी से की तरफ इशारा किया।
जो कि न जाने किसके साथ बातों में मसरूफ थी। अफनान ने उसकी तरफ नरमी से देखा और कहा, हाँ मैं भी बुला था। अफनान स्टेज से उतरकर परीजे के पास क्या कहा, परीजे मारफ तुम्हें बुला रही है। परीजे ने सर हिलाया और स्टेज की तरफ जाने लगी। अफनान वापस मुड़ा तो पीछे खड़ी रिदा को देखकर उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। तुम? अफनान ने हैरान होकर सरगोशी की। रिदा ने आहिस्ता से कहा, आपसे अकेले में बात हो सकती है? उसकी आवाज़ में मायूसी और उदासी थी। अफनान ने इधर उधर देखा, फिर सर हिलाते हुए उसे लेकर स्विमिंग पूल के करीब आ गए। वो दोनों चुपचाप खड़े थे। अफनान ने दीवार से टेक लगाए रखी थी। वो सर झुकाए कुछ सोच रहा था या माजी की तलखियों में खो गया। रिदा ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, नाराज़ होना भी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने तुम्हें छोड़ने का कभी नहीं सोचा था। इस दिन जब तुमने कहा कि तुम्हारे वालिदैन हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं, वो हमें अलग करना चाहते थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। अफनान ने सर झुकाए हुए सुनना शुरू किया। रिदा ने गहरी सांस ली और बोलती रही, तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा कि तुमसे शादी मत करो। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुम्हें घर से निकाल देंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि तुम मुश्किलात में घिर जाओ। तुमने हमेशा एक आरामदेह ज़िंदगी जीते आया हो, मैं तुम्हें इन हालात में नहीं देख सकती थी। अफनान की आंखों में हैरत के साथ साथ गुस्से की झलक भी थी, लेकिन वो खामोश रहा। रिदा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने कहा कि मुझे कोई तुमसे बेहतर मिल सकता, और फिर मैं गाँव चली थी। लेकिन सच ये है, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी वही मामा जो मुझे पसंद नहीं करती थी, आज मारू की शादी के लिए राजी हो चुकी हैं। रिदा के आंसू बहने लगे। अफनान ने बेबसी से उसे देखा। वो बिल्कुल साकित खड़ा था, जैसे किसी गहरे दचके में हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ ये सब किया था। उसे याद आया कि 3 साल पहले उसकी माँ ने बताया था कि रिदा लालची है और सिर्फ उसकी दौलत के पीछे है। अफनान को हमेशा यही समझाएगा कि रिदा इसके पैसों की खातिर इसके साथ रहना चाहती थी। अफनान ने कभी अपनी माँ से हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। आज वो पहली बार अपने फैसले पर पछता रहा था। इसके दिल में बेचैनी और परेशानी बढ़ गई। वो वहाँ से चुपचाप बाहर निकल आया। लाउंज में जाकर मारू को देखा, जो बहुत खुश नजर आ रही थी। सॉरी प्यारी लड़की, बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रिदा है। अफनान ने दिल में सोचा और उसने फैसला किया कि रात को वो किंजा मलिक से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि वो मारूफ से शादी नहीं कर सकता। इधर परीजे मारूफ के कहने पर आलियान को तलाश कर रही थी, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था। उसने आलियान का नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। वो जल्दी से बाहर आई तो देखा तो आलियान अपनी बाइक पर बैठा सिगरेट सुलगाए कश लगा रहा था। आखिर आपके साथ मसला क्या है? आपकी बहन वहाँ परेशान बैठी है और आप यहाँ कौन सिगरेट पी रहे हैं? परीजे ने गुस्से में कहा और उसके लबों से सिगरेट खींच कर जमीन पर फेंक दिया। आलियान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, ये क्या बदतमीजी है, मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। परीजे ने सीने पर बाजू लपेटते हुए कहा, मिस्टर आलियान, जब कोई आपको टुकराता है ना तो वो ये देखकर खुश होता है कि आप अभी तक उसकी यादों से बाहर नहीं आए। आपने ये खुशी रिदा को खुद दी है। अगर आप अपने लिए इतने बेहिस हो सकते हैं तो अपनी बहन के लिए थोड़ी सी खुशी ला सकते हैं। आज आपकी बहन की खुशी का सबसे बड़ा दिन है, उसकी मेहंदी की रात है, मगर आपने क्या किया? उसका दिल ही खराब कर दिया। वहाँ आपकी परेशानी लेकर बैठी है, ठीक तरह से अपना फंक्शन तक एंजॉय नहीं कर रही। वो बोलती जा रही थी और आलियान खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। परीजे मुड़कर वहाँ से चली गई। आलियान ने बाइक स्टार्ट की और एक दुकान पर जाकर मारूफ की पसंदीदा मटका आइसक्रीम खरीदी। आलियान ने आइसक्रीम का मटका हाथ में लेते हुए सोचा, शायद छोटी सी खुशी मारूफ के चेहरे पर खुशी ला सके। जब वो वापस मेहंदी के मुकाम पर पहुंचा तो वहाँ की रौनक और खुशियों की आवाज़ें सुनकर उसका दिल बोझल हो गया। आलियान, मारूफ ने उसे देखते ही पुकारा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। आप कहाँ थे आलियान भैया? मैंने आपका इंतजार किया। आलियान ने मुस्कुराते हुए आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हारी पसंदीदा। मारूफ ने हैरत से आइसक्रीम ली और कहा, आपको पता है आज मेरी मेहंदी की रात है, मगर आप यहाँ नहीं थे। मैं माजरत चाहता हूँ, आलियान ने संजीदगी से कहा, लेकिन मैं जानता था कि तुमको खुश देखना जरूरी है, तो इसीलिए आइसक्रीम लेने चला गया। मारूफ ने आइसक्रीम का एक बड़ा नवाला लिया। उसकी आंखों में खुशी की चमक आने लगी। शुक्रिया भैया, आप हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखते हैं। आलियान ने दिल में कहत किया कि वो अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ देगा और अपनी बहन की खुशी में शरीक होगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंस पड़े, माहौल की रौनक में शामिल हो गए। वो लम्हे में आलियान ने महसूस किया, जिंदगी के छोटे लम्हे ही असल खुशी देते हैं। उसकी आंखें अब बेख्तियार परीजे को तलाश कर रही थी, जो कि उसे एक कोने में किसी के साथ हंसी मजाक करते नजर आई। वो कोई लड़का था। वो तेजी से उसकी जाने पड़ा। वो लड़का उसका हाथ पकड़े उसे कुछ बता रहा था। उसके अंदर नागवारी की तेज लहर दौड़ी। वो दिल चाहा कि उस लड़के के करीब जाकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मार दे, मगर वो फिर रुक गया। इसके दिल ने से पुकारा, कहा, तुम किसी ये करोगे? वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, कुछ नहीं। आलियान ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आंखें परीजे और उस लड़के पर मरकूज थी, जिनकी हंसी की आवाज़ें हर लम्हा इसकी बर्दाश्त को आजमा रही थी। उसने सोचा शायद इसका गुस्सा बेबुनियाद है, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को याद दिलाया कि परीजे की दोस्ती उसके लिए अहम है, बस इसे खुश रहने दो। उसने अपने दिल को समझाया, लेकिन जैसे ही परीजे ने हंसते हुए लड़के की तरफ झुककर कुछ कहा तो आलियान का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। क्या वाकई वो सिर्फ दोस्त है? उसकी सोचों में बेचैनी बढ़ गई। वो अपने कदम वापस खींचता, फिर भी उसकी नजरें परीजे पर थी। एक लम्हे में से एहसास हुआ वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, मगर दिल की गहराइयों में एक अजीब सा एहसास उभर रहा था। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? आलियान ने फिर खुद से सवाल किया। उस लम्हे से महसूस हुआ मामला सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। दिल भारी था। वो पलटने ही वाला था कि परीजे तेजी से उसके पास आ गई। चलो डांस फ्लोर पर चलते हैं, वो उसका हाथ थामते हुए बोली और उसे लेकर डांस फ्लोर की जाने पड़ गई। मेरी कमर को पकड़ो आलियान। परीजे की बात पर आलियान थोड़ा गड़बड़ा गया। क्या? वो हैरान होकर बोला, मैंने कहा मेरी कमर को पकड़ो और अपने करीब करके कपल डांस करो। तुम्हारी सांप का मंगेतर उधर ही देख रही है, उसे ये जानना चाहिए कि तुम आगे बढ़ चुके हैं। उसके कान में धीरे से बोली। ये सुनते ही आलियान ने अपना बाजू परीजे की कमर के घी डाल दिया, मगर उसे हर तरफ से लोगों की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी।
اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جس وہ کسی امتحان گاہ میں کھڑا ہو. پھر جیسے وقت تھم گیا وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے. کپل ڈانس کر رہے تھے گویا دونوں پرندے ہوں جو ایک ساتھ اڑ رہے ہیں. چند لمحے کے بعد آلیان نے خود کو الگ کیا اور ڈانس فلور سے ہٹ کر ایک سائڈ پہ آ گیا اور ایک کولڈ ڈرنک لی اور ایک ہی سانس میں پی گیا. اسی دوران ایک شخص اس کے پاس آیا اور بولا کہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. آلیان حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا. میرا نام عابد رانا ہے, میں ایک پروڈیوسر ہوں. میں شارٹ سٹوریز اور ٹیلی فلمز کر بناتا ہوں. مجھے اپنی اگلی فلم کے لیے ایک نیا چہرہ چاہیے. آپ بالکل پرفیکٹ ہیں, آپ کی شخصیت, آپ کا انداز, سب کچھ میرے کردار کے لیے بالکل فٹ ہے. میں نے ابھی آپ کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا. میں بہت متاثر ہوا. عابد جوش سے بولتا جا رہا تھا لیکن آلیان نے نرمی سے جواب دیا, سوری سر, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں کوئی ماڈل یا ایکٹر نہیں ہوں, میں ایک سادہ انسان ہوں اور سافٹ ویئر انجینئر بننے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے خیال میں کہ آپ کا پروجیکٹ میرے لیے مناسب نہیں ہے. میں اس کے بالکل بھی مطابق نہیں چل پاؤں گا. وہ آہستہ سے بولا. عابد کے چہرے پر مایوسی سی نظر آنے لگی لیکن وہ دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ پریزے تیزی سے ان کے پاس آئی. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آلیان. آلیان نے حیرانی سے پریزے کی طرف دیکھا. کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے تم اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتے آلیان. پریزے نے اسے سنجیدگی سے دیکھا. یہ تمہارے لیے ہے. تم نے ہمیشہ کہا تم اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے تو یہ موقع ہے, لیکن میں یہ نہیں کر سکتا پریزے. آلیان نے سختی سے کہا. میں اداکاری کے لیے نہیں بنا, میں ایک سادہ انسان ہوں. مجھے اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے. پریزے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. کبھی کبھار زندگی ہمیں وہ موقع دیتی ہے جو ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں اور ہمیں ان کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. تمہیں نہیں لگتا تمہیں کم از کم ایک بار کوشش کرنی چاہیے؟ آلیان نے گہری سانس لی اور سر جھٹکتے ہوئے بولا کہ میرے لیے نہیں ہے پریزے. میں نے کبھی اداکاری کے بارے میں نہیں سوچا اور میں عوام کے سامنے خود کو ظاہر کرنے والا بندہ نہیں ہوں. پریزے نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ مشکل ہے لیکن تمہیں خود کو ایک موقع دینا چاہیے. زندگی میں ہر چیز پہلے ہی دن آسان نہیں ہوتی لیکن ایک تجربہ ہو سکتا ہے جو تمہیں کچھ نیا سکھا دے. تمہیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. آلیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ لمحے سوچا. وہ جانتا تھا کہ پریزے اکثر صحیح کہتی ہے. وہ اسے ہمیشہ اس کی صلاحیتوں سے زیادہ پہچانتی ہیں. پریزے, یہ صرف ایک موقع نہیں ہے, یہ میری پوری زندگی کا راستہ بدل سکتا ہے. آلیان نے کہا. بالکل, پریزے نے جوش سے کہا. یہی تو اصل بات ہے آلیان. شاید یہی وہ راستہ ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے. ڈرو مت, میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آلیان نے تھوڑی دیر خاموشی سے سوچا پھر عابد کی طرف مڑا. ٹھیک ہے, میں اس بارے میں سوچوں گا لیکن کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. عابد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. یہی کافی ہے, تم سوچو. جب تم فیصلہ کرو تو مجھے بتا دینا. عابد رانا کاٹ دیتے ہوئے بولا. عابد کے جانے کے بعد آلیان نے گہری سانس لی اور پریزے کی طرف مڑا جو ابھی بھی مسکرا رہی تھی. وہ ہمیشہ کی طرح آلیان کو منانے میں کامیاب رہی تھی لیکن آلیان کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے. تم ہمیشہ جانتی ہو مجھے کیسے منانا ہے نا, آلیان نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی. پریزے نے ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ سے کہا کیونکہ میں تم سے بہتر جانتی ہوں آلیان. آلیان کی نظریں پریزے کی طرف چمکی. اس کی بات پر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پریزے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ مزید قریب آ گئی. آلیان, کیا تم نے کبھی سوچا ہماری دوستی سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں ایک سنجیدگی تھی جس نے آلیان کو چونکا دیا. اسے لگا اس کی دھڑکن رک گئی. آلیان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی نگاہیں پھیر لی. نہیں پریزے, میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا. اس کی آواز میں الجھن اور بے چینی تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اس دوستی سے آگے نہیں بڑھے گا. پریزے نے سنجیدگی سے کہا. شاید اب وقت آ گیا ہم سوچیں. زندگی میں کچھ فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں اور ہمیں خود کو موقع دینا چاہیے. آلیان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اس نے خود کو روکنے کی کوشش کی لیکن اس کی آنکھوں میں پریزے کی باتوں کا اثر صاف نظر آ رہا تھا. پریزے, میں نہیں جانتا کیا کہنا چاہیے. ہم اچھے دوست رہے ہیں, میں یہ رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا. میں اور تم صرف ایک دوسرے کو اچھے دوست سمجھتے ہیں. وہ لب کچلتے ہوئے بولا. پریزے نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. اگر میں کہوں کہ میں دوستی سے کچھ زیادہ محسوس کرتی ہوں. یہ سن کر آلیان کی دھڑکن جیسے رک سی تھی. وہ حیرت میں تھا اور اس کے لب خاموش تھے. پھر اچانک پریزے نے ایک زوردار کہا لگایا. او خدایا, تمہارا چہرہ دیکھنے لائق تھا. پریزے ہنستے ہوئے بولی. آلیان اسے حیرانگی سے دیکھتا رہ گیا. کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ پریزے نے ہنستے ہوئے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا. ہاں ظاہر ہے, میں کسی کو جلانے کی کوشش کر رہی تھی. کس کو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا. تمہاری سابقہ منگیتر کو جو یہاں موجود تھی اور ہمیں دیکھ رہی تھی. اس نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے آلیان کی سابقہ منگیتر کی طرف دیکھا. آلیان نے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے بولا. تم واقعی کبھی پاس نہیں آتی ہے نا؟ پریزے نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. بس مجھے لگا کہ اسے مزید چیلنج کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ سوچ کر خوش نہ ہوتی رہے کہ تم اس کے متعلق سوچتے ہو اور تم آگے نہیں بڑھ سکے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی آ چکی ہے اور وہ میں ہوں. پتہ ہے, مجھے بے وفا لوگوں سے سخت قسم کی الرجی ہے. وہ اب بھی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اوہ, یہ سب کچھ صرف ایک کھیل تھا. آلیان نے اپنی بے چینی کو ایک گہری سانس کے ساتھ دور کیا اور ہلکی مسکراہٹ سے بولا. تم واقعی پاگل ہو پریزے. پریزے نے چمکتی آنکھوں سے کہا. لیکن تمہیں یہ پاگل پن پسند ہے؟ نہیں, آلیان نے سر ہلاتے ہوئے کہا. ہاں شاید. ویسے ایک بات بتاؤں, میں تمہیں اتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اب آپ کہہ کر مت لیا کرو. آج تم نے مجھے اچانک تم کہنا شروع کر دیا. وہ ایک دم چونک کر بولا. کیا واقعی میں آپ کو تم کہہ رہی تھی؟ اوہ مائی گاڈ, میں بہت معذرت خواہ ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا. دیکھیں نا, آپ مجھ سے بڑے ہیں اور میں اس طرح کی گستاخی کرتی رہی. مجھے معاف کر دیجیے گا آلیان, پلیز پلیز. وہ کان پکڑے بولے جا رہی تھی مگر اس کی آنکھوں سے شرارت چھلک رہی تھی. بہت بدتمیز ہو تم. شاید تم میرا مذاق اڑا رہی ہو.
वो चिढ़ कर बोला, बस आज दिल कर है, वैसे मैंने जो तुम्हें इतनी इज्जत दी थी ना, आप कह के कर, अब आइंदा से नहीं दूंगी। कहते हैं कि दोस्ती में कोई इज्जत नहीं होती, तो बस आज के बाद कोई फॉर्मेलिटी नहीं। और हाँ, मैं चाहती हूँ तुम छोटी स्क्रीन पर आओ और फिर एक वक्त आए कि लोग तुम्हें बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहें। कितना अच्छा होगा ना, हम तुम्हारी मूवी देखने के लिए किसी सिनेमा में जाएं। वो आंखें मूंदे एक्साइटेड अंदाज में बोलती जा रही थी, ओ खुदाया, मतलब अब तुम ऐसे टॉर्चर करना मुझे। और हाँ, मुझे ज़्यादा खौफ दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना मालूम है जब मैं वहाँ ऑडिशन देने जाऊँगा ना, तो पहली बार में फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मुझसे एक्टिंग नहीं होती। ज़्यादा खुशफहमियाँ मत पालो और ना ही मुझे खुशफहमी में रहने दो। ज़मीन पर उतरो मैडम। वो मुंह बनाकर बोला, आपका नाम किसने आलियान रखा था? आपका नाम आलियान नहीं, नेगेटिविटी होना चाहिए था। और हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, आप न सिर्फ सिलेक्ट होंगे बल्कि बहुत जल्द एक बड़ा नाम होगा। लोग इंटरव्यू करने आएंगे, सबसे बढ़कर लड़कियाँ आपके आगे पीछे होंगी और कहेंगे ऑटोग्राफ प्लीज। और हाँ, आपने ऑटोग्राफ नहीं देना, क्योंकि सबसे पहले ऑटोग्राफ मुझे देना है। इसके बाद किसी भी XYZ को देते रहना। वो तेज लहजे में बोली, तुम मेरा फोकस मेरी पढ़ाई से हटाकर क्यों लगा रही हो? शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वो चिंचिला कर बोला, मैं जानती हूँ आप दोनों जगहों पर कामयाब होंगे, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है, मेरा एतबार बना रहेगा, बेस्ट ऑफ लक। वो मुस्कुरा कर बोली, तो वो भी धीमा सा मुस्कुरा दिया। मेहंदी के फंक्शन के बाद वो घर के लिए निकल आए, मगर आलियान घर आकर भी सिर्फ और सिर्फ परीजे के बारे में सोचता जा रहा था। न जाने क्यों उसके बारे में सोचना ही अच्छा लग रहा था। अगले दिन बारात की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। वो सुबह से होटल के चक्कर पे चक्कर काट रहा था। जब तैयारियां मुकम्मल हुई तो उसने परीजे को फोन किया, तो उसने बताया कि वो लोग बस बारात लेकर निकल ही रहे थे। फिर वो मारूफ को देखने के लिए ब्राइडल रूम में आया। उसे देखकर उसकी आंखों में नमी से तराई। उसके सीने से लगी कितनी देर होती रही। फिर वो उसे आहिस्ता से अलग करते हुए बोला, आप तुमने बिल्कुल नहीं रोना, पता है कितने पैसे जाया किए तुम्हें खूबसूरत बनाने के लिए, सब जाया हो जाएगा। वो छीड़ते हुए बोला, तो वो बेख्तियार हंस पड़ी। फिर कुछ देर में बारात पहुंच चुकी थी। वो इस्तकबाल के लिए बाहर आए तो उसकी निगाहें परीजे पर टिक गई, जो कि हैवी साड़ी में रो देने के करीब थी। जब तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो ये क्यों कैरी किया है? तुम कोई इजी सा ड्रेस पहन लेती ना। वो उसके पास आकर बोला तो उसने छिनछिला कर उसे देखा। ये जो माई होती है ना, ये कुछ नहीं करने देती। वो तब कर बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो उसके करीब आया और उसकी साड़ी का पल्लू कमर के गिर्द लपेटते गिरा लगा दिया। उसने सदमे भरे अंदाज में इसे देखा, मगर तुम जाकर कहीं मेरी सारी साड़ी खराब कर दी। वो उसके कंधे पर मुक्के बरसाते रो दी। उफ तौबा है आलियान बेटा, यहाँ करीब ही शॉपिंग मॉल है, प्लीज इसे कोई ड्रेस दिलवा दो। पूरा रास्ता रोते आई है, किंजा मलिक ने कहा। तो वो अरसलान को बताकर उसे लेकर शॉपिंग मॉल आ गया। वो एक ओपन मैक्सी टाइप गाउन देखा जो कि शिफॉन का था। वो पहनकर बाहर आई तो उस मैरून कलर के गाउन में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो मबहूस से उसे देखता रहा तो उसने मेकअप ठीक किया और उसके साथ होटल वापस आ गई। कुछ देर में रुखसती का शोर उठा। मारूफ को पाँव के हिसार में लिए गाड़ी तक बिठाकर आया। फिर वो अकेला वहां बैठा सर झुकाए रो रहा था कि एक हाथ उसके कंधे पे आ ठहरा। उसने सर उठाकर देखा तो परीजे थी। उसने पास बैठते उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया तो वो जल्दी से आंसू साफ कर गया। वो अपने घर वालों के साथ नहीं गई। उसने पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो बस इसीलिए कुछ देर तुम्हारे पास ठहरूंगी, फिर चली जाऊंगी। और हाँ, एक बात अभी करने आई हूँ कि तुम्हारी बहन पर हर आने वाली मुश्किल के सामने ये परीजे मलिक हमेशा खड़ी रहेगी, इसकी ढाल बनकर। मैं परीजे मलिक उसकी खुशियों की जमानत देती हूँ। उसके हाथ पर हाथ रख के बोली तो वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। फिर कुछ देर वो उसके पास बैठने के बाद वापसी के लिए निकल गई। वो भी होटल से घर के लिए निकल आया। अफनान कब से लॉन में बैठा सिगरेट पे सिगरेट के कश लगाए जा रहा था। उसके अंदर का जैसे गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। कल रात उसने किंजा मलिक से बहुत मिन्नतें की कि वो ये शादी नहीं कर सकता, मगर वो डट कर बोली वो किसी लड़की की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करेगी। वो उनसे उलझ गया, मगर उन्होंने कहा अगर तुम्हें इससे शादी से इनकार करना है तो ठीक है, जाओ, आज से हम तुम्हारे लिए मर गए। वो इनकी बात पे बहुत परेशान हुआ। फिर आज वो उसे ब्याह कर ले आया, मगर उसके अंदर बहुत गुस्सा था। वो जानता था कि वो ये गुस्सा उस पर निकाल देगा, इसलिए वो कब से यहीं पर बैठा जल पुड़ रहा था। क्योंकि एक हकीकत और भी थी, वो इस लड़की को जो अंदर उसके इंतजार में बैठी थी उसे भी दुख देने का सोच नहीं सकता था। कुछ देर के बाद वो उठकर कमरे में आया। उसे लगा कि वो उसका इंतजार करते करते सो चुकी होगी, मगर वो उसके इंतजार में अभी तक बैठी थी। उसकी पलकें नींद से बोझल थी। वो उसके पास जाकर बैठ गया। वो खुद ही इसके करीब आते इसके कंधे पर सर रखी। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी, कहाँ चले गए थे आप? उसकी कुर्बत से उसे वहशत सी होने लगी। वो उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटा, कमरे में मौजूद हर चीज को तहस नहस करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपना हाथ तक जख्मी कर लिया। मारूफ होते हुए उसे देख रही थी। फिर वो नहाने के बाद आकर बेड पर लेट गया। मारूफ अपने बिखरे वजूद को समेटती उठी और कमरे से सारा बखेरा समेट कर उसकी दूसरी साइड पर आकर लेट गई। मारूफ ने अगली सुबह अपने जब्त का बंधन टूटने ना दिया। वो कमरे से बाहर निकली तो सबके साथ इसी तरह मिली जैसे सब कुछ नॉर्मल है, मगर परीजे ने उसकी आंखों में गहरी उदासी देखी थी। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, क्या कुछ हुआ है? परीजे ने पूछा। नहीं तो क्या होना था, बस रात देर तक जागना इसलिए ऐसा कुछ। वैसे भी भैया के मतलब की सोच रही हूँ कि उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। वो लब चबाते हुए सर आह भरते हुए कहने लगी, तुम दोनों बहन भाई का कुछ नहीं हो सकता, और खा लिया होगा खाना। यहाँ तुम अपने भाई की परेशानी में गुल रही हो, वहाँ तुम्हारा भाई सुबह से मुझे 10 बार कॉल कर चुका है, ये लो बात कर लो, और तुम अपना मोबाइल घर में बुलाई, क्या चीज हो यार तुम? परीजे ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने परीजे के मोबाइल से आलियान को कॉल की और उसकी खैरियत दरियाफ्त की। फिर वो नाश्ता करने आ गई। शाम को वलीमा था और उसे जो डर था कि ना जाने वो क्या रिएक्ट करेगा, मगर वो बड़ी दिलजमी से तैयार हुआ था। वो पीच कलर की मैक्सी में बहुत हसीन लग रही थी। फिर उनका वहाँ होटल में फोटो शूट हुआ। रात को वो कुछ देर के लिए अपने मेके गई और फिर थोड़ी ही देर में उसके साथ वापस आ गई। आज खिलाफ तवक्को वो काफी ज्यादा खुश था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। कुछ देर के बाद वो मोबाइल लेकर टेरेस पर चला आया। वहाँ खड़ा किसी से बातें कर रहा था। वो पूरी रात रोती रही थी। आइंदा आने वाली जिंदगी में वो जैसे हालात से समझौता कर चुकी। इसकी शादी को 1 महीना होने वाला था। वो अपने मेके नहीं गई थी क्योंकि आलियान उस वक्त शहर से
बाहर था और उसकी शॉर्ट मूवी की कोई शूटिंग चल रही थी। अगर वो उसे रोज़ कॉल करता था तो उसे सब ठीक है उसी का साइन देती थी। वो मुतमईन हो जाता था। वक्त के साथ साथ उसने उसे बुलाना छोड़ा था तो वो अब बिल्कुल ही बात नहीं करती थी। वो क्या कर रहा है क्या नहीं इस चीज़ का उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो जैसे अंदर ही अंदर बेहिस होती जा रही थी। उस दिन वो एक गिफ्ट पैक लाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखता वॉशरूम में चला गया और बेख्तियार उस गिफ्ट पैक को खोलकर देखने लगी तो वो एक लेडी परफ्यूम था। वो हाथ में पकड़े उसे गुमसुम देख ही रही थी कि वो एकदम से बाहर आया तो घबराहट में उसके हाथ से परफ्यूम छूट कर टूट गया। व्हाट द हेल, हमारी हिम्मत कैसे हुई इसे पकड़ने की। वो उसके जबड़े दबोचे दहाड़ा तो वो नम आंखों से उसे देखने लगी। जानती भी हो कितना महंगा था ये, मैंने स्पेशल लंदन से मंगवाया था। वो गुस्से से चीख उठा। मैं सिर्फ चेक कर रही थी, वो लुगलुगेर लहजे में बोली। क्यों कर रही थी तुम ये चेक? ये तुम्हारे लिए नहीं था। ये बात जानते हुए भी इसके बावजूद तुमने इसको हाथ कैसे लगाया? वो उसके बाजू को मरोड़ते हुए कमर के पीछे लगाकर बोला। वो सिसकारी भरती उसके सीने पे सर रखे रोने लगी। मैं थक गई हूं अफनान, ये दर्द सहते सहते अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे एक बार मेरा कसूर बता दीजिए। कौन है आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से मुझे ऐसी तकलीफ दे रहे हैं? आपने ही तो मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे नफरत करने लगे? वो रोते हुए बोली। मेरी जिंदगी में मेरी मोहब्बत वापस आई है जो कि हमेशा से मेरे दिल में थी, जिसे मेरी माँ ने मेरी जिंदगी से दूर किया था। और ये बात जब मुझे पता चली तो मैं उसे दोबारा से पाना चाहता था। मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मगर मानी ही नहीं तो अब भुगतो तुम भी। बस कुछ अर्सा और मैं तुम्हें जल्द ही तुम छोड़ दूंगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी लड़का मिल जाएगा। उसे पीछे हटाते हुए बोला तो पीछे खड़ी परीजे को देखकर साकित रह गया। वो धुआं धुआं चेहरे से उसे देख रही थी। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? आपकी रजामंदी से रिश्ता मांग तय हुआ था, आपने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको नहीं पता कि आपकी बहन भी है, उसके उसके साथ अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? अगर कोई मर्द धोखा करे तो क्या सोच होगी आपकी? वो ऊंची आवाज से चीख चीख कर बोलने लगी और उनकी आवाजें सुनकर मिसेस किंजा मलिक अंदर दाखिल हुई तो मारू को जमीन पर बैठा रोता देखकर वो भी लब भींच गई। वो निगाहें चुराता बाहर निकल गया। आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मॉम, और तुमने भी माही, तुमने एक बार भी अपनी अपनी इस तकलीफ का मुझसे जिक्र नहीं किया। मैं तुम्हारी बहन जैसी दोस्त हूँ यार, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? मुझे अभी और इसी वक्त आलियान को इन्फॉर्म करना होगा। वो बोलती हुई आलियान को कॉल मिलाने लगी तो मारूफ ने तेजी से उसका मोबाइल छीनते हुए साइड पे रखा। मुझे मेरा फोन वापस करो, तुम्हारे भाई को ये बात मालूम होनी चाहिए। वो गुस्से से बोली। नहीं प्लीज ऐसे मत करो, भैया इस वक्त शहर से बाहर है, वो अकेले वहाँ परेशान हो जाएंगे। ये बात नहीं बता सकते अभी, वो टूट जाएंगे। प्लीज प्लीज कुछ मत बताना, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। उसके सामने हाथ जोड़ते हुए रो पड़ी तो उसने बेबसी से किंजा को देखा। चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, यहाँ मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रहने दूंगी। जो शख्स तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करता है मैं हरगिज़ इस शख्स के साथ नहीं रहने दे सकती। वो कहते हुए उसका हाथ पकड़ते बाहर की जानी पड़ी। फिर वो उसे अपने कमरे में लाई और उसे पानी पिलाने के बाद लटा दिया। पूरी रात वो दोनों अपनी अपनी जगह रोती रही। अफनान रात के वापस आया था, उससे बात ना हुई, मगर अगली सुबह उसकी अदालत लग चुकी थी। वो लड़की कौन है मॉम जिनसे ये मोहब्बत करते हैं? उनकी जिंदगी में वापस आ गई। आप दोनों इस लड़की से मिले थे कुछ अर्सा कबल, क्या आप जानते हैं वो कब आई? वो गुस्से से बोली। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और फिलहाल मैं वकील से बात करके तलाक के पेपर तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता। उसने मेरी जिंदगी में आने के लिए यही शर्त रखी है। मॉम को वो पसंद नहीं तो ठीक है, मैं उसे अपने फ्लैट पे रख लूंगा। वो स्पार्ट लहजे में बोला और बाहर की जाने पड़ गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या आपकी बेटी होती तो आप ऐसा करते? बहुत गलत किया आपने। आपने इस घर को बचाने के लिए माँ रुख की कुर्बानी दी है। जानती है अगर उसके भाई को पता चला तो पागल हो जाएगा। वो नम लहजे में बोली। फिलहाल उसके भाई को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसे किसी भी तरह मना लूंगी। वो किंजा के साथ ही रहेगा, वो मारूफ के साथ ही रहेगा। उसके लिए माही ही दुरुस्त है, वो रिदा नहीं। किंजा मलिक ने रिदा का नाम दिया तो वो चौंक उठी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो लड़की जो कि आलियान की मंगेतर रह चुकी है, फूफी भैया की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और दोबारा से उनकी जिंदगी में आ गई। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये बात तो कंफर्म है कि भैया अब माही को तलाक नहीं देंगे। मैं शोहरत का पर्दाफाश करके भैया की जिंदगी से दूर करूंगी। लेकिन जितने आंसू इस 1.5 महीने में माही ने बहाए हैं ना, इसका हिसाब चुकाना होगा आपके बेटे को। कितनी तकलीफ दी है उसे, पूरी रात रोती रही है। न जाने भैया के इस सलूक से कितनी रातों से रो रही है। वो बोलती हुई अपने कमरे की जानी पड़ गई। बाहर खड़ा आलियान साकित रह गया। ये हकीकत जानकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अपना वजूद घसीटता वहां से आ गया, मगर उसे पीछे से शिकवे थे और बहुत ज्यादा। अब बस बहुत हो गया ये टॉर्चर से ना। अब मैं अपनी बहन की जिंदगी को तुम्हारी जरिए महफूज करूंगा। परी से मलक, मेरी बहन की वफा को तुम्हारे भाई ने जो रोंदा है, इसकी सजा तुम भी भुगतोगी। जब खुद की बहन तड़पेगी तो वो तड़पेगा। वो कीना तो उस अंदाज में सोचे गया। फिर अगले दिन वो दोबारा मलिक हाउस आया और परीजे से कहा कि वो उसके साथ एक डिनर करना चाहता है, तो वो उसे रेडी होने पर आने का कहती कमरे में चली गई। वो कुछ देर उसकी माँ के पास रुक कर बैठा रहा। फिर वो मारूफ के पास बैठकर उसे अपनी शूटिंग के मुतालिक बताने लगा। फिर वो परीजे को लेकर शहर से दूर एक जंगल बियाबान में गया। ये हम कहाँ आए हैं? आलियान को स्कूटी हनुमा घर में दाखिल होते हुए बोली। आलियान ने उसे अंदर धक्का देते हुए दरवाजा बंद कर दिया। आलियान ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? वो मुतवहिश अंदाज में दरवाजे को पीटते हुए बोली कि दरवाजा अभी नहीं खुलेगा, बस कुछ देर में ही मेरे दोस्त वकील और मौलवी साहब के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। हम दोनों का यहाँ निकाह होगा। आलियान ने कहा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों कर रहे हो ये सब? वो चीख उठी। ये क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। ये तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की सजा है। जो तुम लोगों ने मेरी बहन को अजियत दी है उसका बदला है ये। चीख उठा तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हम बैठकर बात करते हैं ना प्लीज, दरवाजा खोलो, ये सब ठीक नहीं है। इस तरह सब खराब होता जाएगा। मेरे भाई गुस्से में न जाने क्या कर जाए। जैसे इस वक्त गुस्से में तुम हमारी दोस्ती तक को दाव पे लगा चुके हैं। तुम्हारा करियर अभी शुरू है, प्लीज अपने आप को बर्बाद मत करो। वो तड़प उठी।
बकवास बंद करो अपनी, और हाँ ये शादी तुम्हारी रजामंदी से होगी, यही कहोगी सब तुम सबको। वो बोला, मैं हरगिज़ शादी नहीं करूंगी तुमसे, तुम जो भी कहते हो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी, अपनी जान तक दे दूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। इस बार गुस्से से बोली, तो ठीक है, इस जंगल बियाबान में जिंदगी गुजारो, पूरी रात जब तुम घर नहीं पहुंचोगी तो मलिक हाउस पर एक क़यामत टूटेगी, तुम्हारी माँ वैसे ही मरने वाली हो जाएगी जिनकी तुम्हारे अंदर जान है, फिर मैं तुम्हें यह जंगल में तनहा छोड़कर चला जाऊंगा। वो सर्द लहजे में बोला। वो खौफ से जब्त बढ़ गई। फैसला तुमने करना है, तुम्हें मुझसे निकाह करके अभी और इसी वक्त घर जाना है या रात इधर ही गुजारनी है। वैसे मैंने सुना है और ये हकीकत भी है, ऐसी सुनसान जगहों पर जिन्नात का बसेरा होता है, तुम्हें अगर जिन्नात का निवाला नहीं बनना तो मैं जो कह रहा हूँ उसे मान लो। आलियान ने कहा तो उसने खुद से झरझरी ली। मैं तैयार हूँ, वो थूक निकलते हुए बोली। फिर कुछ ही देर में उसका निकाह आलियान के साथ हो चुका था। वो जो उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी, आज उसे उस पल की शख्स से नफरत महसूस हो रही थी। आलियान सबकी जाने के बाद उसके करीब आकर बैठकर उसे देखने लगा। सुहागरात कहाँ मनाओगी, किसी होटल में या फिर तुम्हारे कमरे में? और उसके भीगे रुखसार पर मौजूद आंसुओं को लबों से चुनते हुए बोला। वो तड़प कर उससे दूर होने लगी, उसकी कमर में हाथ डालकर खींच कर खुद के करीब कर गया और उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो तड़पती उससे खुद को छुड़वाने लगी, मगर वो तो उसे किसी भी किस्म की रायत देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर वो उसे छोड़कर दूर हुआ तो अपना चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। चलो तुम्हें तुम्हारी घर छोड़ दूं, वो उठकर खड़ा होते हुए बोला। फिर वो उसे लेकर मलिक हाउस आया और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो अंदर बैठे सब लोग उन्हें देखकर चौंके। वो भाग कर गई और जाकर किंजा मलिक के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ बच्चे, किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। किंजा मलिक ने तड़प कर पूछा। जी किसी ने कुछ कहा नहीं बल्कि किया है। एक्चुअली मैंने और आपकी बेटी ने शादी कर ली है और वो बेचारी इसलिए रो रही है कि हमने शादी तो कर ली, लेकिन इस शादी का अंजाम न जाने क्या होगा। पता नहीं आप लोग हमें कबूल करेंगे या नहीं। वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोलते हुए सोफे पे बैठ गया। क्या कह रहे हो? अल्लाह, तुम दोनों ने शादी कर ली? ऐसे कैसे कर सकते हो? एक बार मुझसे तो कहा होता, क्या मैंने तुम्हें मना कर देना था? किंजा मलिक ने उसे कंधों से झंझोड़ते हुए कहा। झूठ बोल रहे हैं ये, इन्होंने जबरदस्ती धमकी देकर शादी करवाई है क्योंकि ये अपनी बहन का बदला लेना चाहते हैं। वो गुस्से से बोली तो आलियाना अफसोस से उसे देखने लगा। हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की? मेरी बहन तुम्हारा खिलौना नहीं है। अफनान गुस्से से उसकी तरफ लपकते हुए उसका गिरेबान पकड़कर चीखा। अरे वाह, अपनी बहन की तकलीफ बड़ी हो रही है तुम्हें। वो किसी की बहन नहीं थी जो तुम्हारे साथ रुखसत होकर इस घर में आई थी। वो भी खिलौना नहीं थी, मेरी बहन थी। हम 3 भाइयों की इकलौती बहन। मैंने जिंदगी में उसे हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी भाभीियों के अताप से बचाता इस घर में उसे रुखसत करके भेजा। और मैंने एतबार किया कि मेरी बहन को खुशियां मिलेगी, मगर क्या मिला? तकलीफ, अजियत, दुख, वो भी किसी और लड़की की वजह से। तुम्हें अगर कोई और पसंद थी तो इनकार कर देते। मेरी बहन की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? वो एक झटके से अपना गिरेबान छुड़वा कर बोला। क्या इनकार करता? मेरी माँ को इनकार पसंद नहीं आता। इन्हें दुश्मनी है मुझसे, इनको सिर्फ गुलाम चाहिए, बेटा नहीं जो इनके मुताबिक चले। चाबी वाला खिलौना समझ रखा है इन्होंने मुझे, तो फिर मैं भी इनकी पसंद की हुई लड़की को कैसे अपनी जिंदगी में रहने देता? मैंने उसे अजियत दी, वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। मैं अपनी जिंदगी को खुद संवारूंगा, अब कोई मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा। अफनान ने गुस्से से कहा और तन फन करता बाहर निकल गया। किंजा मलिक ने सर थाम कर रोना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी आंटी जी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए किया, लेकिन मैंने ये रिश्ता बहुत सोच समझ कर किया है। मैं कभी भी परीजे को एक दुख नहीं दूंगा। वो परीजे को देखते हुए बोला। वो हकीकतन अफनान की बातों से परेशान हो गया था। उसे मालूम था कि अफनान रिता की बातों की चाल में पूरी तरह फंस चुका है। बताइए अब मैं क्या करूँ? बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी, मेरा बेटा अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। आपने एक बार भी मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा आलियान। आपने कहा था उस दिन कि आप मुझे माँ जैसी समझते हैं, तो एक बार मुझसे बात कर लेते, हम इस मसले का हल निकाल सकते थे। इसके 100 हल थे, हम उस लड़की की असली सबके सामने ला सकते थे। मगर अब बताइए क्या होगा? अगर आपको लगता है वो आपकी बहन को नहीं छोड़ेगा तो ये गलत फहमी है। आज वो अपनी माँ को इतना कुछ कहकर चला गया, अपनी माँ को जिसने हमेशा उसकी तकलीफ में अपने सर ले ली थी, हमेशा उसकी खुशियों का ख्याल रखा था और भलाई चाहिए थी। आज उसकी माँ गलत होगी, वो अपनी बहन की क्या परवाह करेगा? किंजा मलिक ने रोते हुए कहा तो आलियान जैसे शर्म से सर झुका गया। शेम ऑन यू, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पता है कुछ दिन पहले मैं किंजा से कह रहा था कि तुम काफी सुलझे हुए लड़के हो और मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हारे बारे में सोचा था। उफ खुदाया, अब सोच रहा हूँ मैंने सब क्यों सोचा। तुम भी वैसे ही निकले, जज्बाती और बगैर सोचे समझे कुछ भी कर गुजरने वाले। सुबैर मलिक ने गुस्से से कहा। वो शर्मिंदगी के मारे अब सर भी नहीं उठा पा रहा था। उसने वाकई में जज्बाती होकर ये सब कर दिया था। एक बार भी नहीं सोचा कि इस मसले का कोई और हल भी निकल सकता है। उसने अपनी मोहब्बत को भी रुसवा कर दिया। सर अब इन बातों को जाने दे, हमें इस मसले को बाद में देखना है। पहले हमें रिदा की सच्चाई को अफनान के सामने लाना होगा। मैंने वाकई ज्यादती की है, मुझे उसी दिन इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए था। अगर मैं शायद खुद घर से हो गई थी। मैंने सोचा था कि अगर मारो उसकी जिंदगी में आ जाएगी तो मेरा घर संवर जाएगा, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर रिदा उसकी ज़िंदगी में आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब मैं इस सब के बाद मारूफ के साथ मज़ीद कुछ ज़्यादा नहीं होने देंगे। हमें सबसे पहले ये काम करना होगा। जी मामा, मैं भी यही चाहती हूँ। मैंने ये समझाने की बहुत कोशिश की है कि मैं मारूफ की दुश्मन नहीं। खैर मैंने पहले ही सोच लिया था एक आइडिया। जैसे आपने उसे पहले वहाँ बुलाया था, अब वैसे ही दोबारा बुलाएंगे। मैं और ये वहाँ उलिया तब्दील करके आएंगे और आपको मामा उससे ऐसी बात करनी है जैसे आप अपनी बेटी की खुशी के आगे हार चुकी हैं। उसका नाम लेने से गुजरेज करते हुए बोली तो आलियान दिल ही दिल में छिंछला सा गया, मगर उसका आइडिया उसे काफ़ी पसंद आया। फिर अगले दिन किंजा मलिक ने उसे कैफे में बुलाया। आलियान ने धाड़ी लगाकर और फरीजे ने भुरका पहनकर एक टेबल छोड़कर बैठ गई। आलियान ने गुलदान में पहले ही से एक मिनी कैमरा लगा दिया था जिससे वो अपने मोबाइल से कनेक्ट करता और उसने कानों में हेडफोन लगाकर सब सुन और देख सकता था। जी क्यों बुलाया मुझे आपने? रिदा ने कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए मकरूराना अंदाज में कहा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी हकीकत अपने बेटे को बता दूंगा तो मेरी बात पर यकीन करेगा।
अगर उसे पता चल गया कि तुम आलियान की मंगेतर रह चुकी हो तो इस बात पर भी तुम्हें छोड़ सकता है। हाँ 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 आंटी जी, बड़ी ही मज़ाहिया है। आपको क्या लगता है परी से कोई कच्ची की गोलियाँ खेलती है? मैंने आपको बेटे को पहले ही बता दिया था कि मेरी आलियान से मंगनी रह चुकी है और आलियान को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो एक नंबर का मगरूर आदमी है और ये हकीकत भी है। वैसे ये कोई झूठ नहीं, वो वाकई बहुत मगरूर है। पता है आंटी जी, मुझे दिलो जान से पसंद हुआ करता है, इतना खूबसूरत है वो कि किसी भी लड़की का दिल जीत ले। लेकिन क्या है ना, दौलत ने उसके हुस्न को मध्यम कर दिया। अफनान भी हैंडसम है मगर उसके पास एक और एक्स्ट्रा हॉबी है, दौलत, और मुझे यही तो चाहिए। पता नहीं मैं अफनान के बाद कितने लड़कों के साथ वक्त गुजार चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। अफनान जैसे मोहब्बत नहीं करता, वो तो सब कुछ लौटाने का तैयार है। वो बोलती जा रही थी, ओह वाकई तुम जानती नहीं यार कि ये दौलत मेरी और जुबैर मलिक के नाम है। मैं अगर चाहूँ तो उसे आग कर दो, तुम उसके साथ किसी मामूली से घर में रहना पसंद नहीं करोगी। यही बात बरसों पहले हुई थी, तुम तड़प उठी थी। अच्छा मैंने तुम्हें बताया मैंने इसे तुम्हें आजमाने के लिए किया तो तुम्हें बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं सच में उसे अपने घर से निकाल दूंगी क्योंकि उसने एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया है। वो बोली तो रिदा क्या कहा न कहा हंस पड़ी। शायद आप जानती नहीं है, शरीयत ने अगर करने के बावजूद भी औलाद का हक नहीं माना जा सकता। हाँ तो हम कोर्ट से रुजू कर लेंगे। हाँ कुछ अर्से में इसके साथ ऐसी वैसी जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं उसे मना लूंगी कि वो अपनी दौलत पाने के लिए आपके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। कैसा लगेगा आपको जब सब लोग कोर्ट में आएंगे, हम लोग अपना हक पूरे हक के साथ लेकर जाएंगे? मैं ऐसा ही करूंगी। वैसे भी मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं आपके साथ वैसे भी नहीं रहने यानी। आप अपने आप को जितना होशियार समझती है ना उतनी है नहीं, तुम भी जितना खुद को स्मार्ट समझती हो उतनी हो नहीं। किंजा मलिक ने कहा, मैंने पहले भी तुम्हें आजमाया था, तुम मेरे जाल में फंस गई, इस बार भी तुम मेरे जाल में फंस गई। यहाँ पर बुलाना, ये सब कहलवाना, ये मेरा ही जाल है। मेरा बेटा आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलेगा, ये मेरा तुमसे वादा है, किंजा मलिक ने कहा, और फिर उसे हैरान छोड़ती हुई बाहर की जाने बढ़ गई। इस औरत का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है, मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। अरे अगर मेरा बस चले तो इसे जान से मार डालो। इसकी बात सुनकर आलियान ने जोर से मुट्ठियां बीच ली। प्रीति का तो बस नहीं चल रहा था तो वो जाकर 2-4 थप्पड़ जड़ दे। फिर आलियान ने वीडियो सेव की और रिदा के जाने के बाद आलियान ने वो वीडियो सेव करके मोबाइल प्रीति की तरफ बढ़ा दिया। वो झपटने से अंदाज में मोबाइल लेकर बाहर चली गई। शाम को वो और किंजा मलिक अफनान के इंतजार में बैठी थी। वो घर पहुंचा और दंदनाता हुआ उनके पास आया। आप रिदा से मिलने क्यों गई थी? आपने उसे इंसल्ट करने के लिए वहां बुलाया था? शर्म आनी चाहिए आपको। आप जानती हैं कि वो आपके बेटे की मोहब्बत है, उसी नाते कबूल कर लीजिए। वो गुस्से से बोला, चलो आज मैं तुम्हें परसों पहले की सच्चाई दिखाती हूँ कि क्या हुआ था। मैंने गलत फैसला किया था या सही, अब इसका फैसला तुम करोगे। किंजा मलिक ने कहा और फिर रिमोट दबाया। रिदा और किंजा मलिक के दरमियान गुफ्तगू हुई और रिदा की आखिरी बात ने अफनान को शॉक कर दिया। वो गिरने के अंदाज में सोफे पे बैठ गया। तुम्हारी माँ तुम्हारी दुश्मन नहीं थी कि तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की को चुन लेती जो तुम्हारे काबिल भी नहीं थी। मैंने तुम्हें एक हीरा ढूंढ कर दिया मगर तुमने तो फिर से इस पत्थर को पाने की ख्वाहिश मान ली। शेम ऑन यू। चलो कुछ और नहीं तो इंसानियत के नाते ही इस बात का लिहाज कर लेते कि अल्लाह पाक ने उसे इंसान पैदा किया है, मगर तुमने क्या किया उसके साथ? इस तरह का सलूक किया, वो भी उस घटिया लड़की की वजह से। किंजा मलिक बोलती जा रही थी, उम्मीद करती हूँ तुम्हारे दिमाग में उसने जो जहर भरा है उसका इलाज हो चुका हो गया। और हाँ, उस लड़की की बातों में मजीद मत आना, ये कोई झूठी वीडियो नहीं है, इसका एक एक लफ्ज सच है। चाहे तो जाकर इसकी जांच पड़ताल करवा लो, क्योंकि अपनी माँ से ज्यादा तो तुम्हें उस लड़की पर भरोसा है ना। वो तलख लहजे में बोली तो वे झटके से उठा और अपने कमरे में आ गया। पछतावा, दर्द, तकलीफ क्या कुछ नहीं महसूस कर रहा था। उसे माहरूफ की सिसकियां सुनाई दी तो वो कानों पर हाथ रखे जमीन पर बैठता चला गया। फिर उसका मोबाइल बजने लगा तो रिदा का नाम चकमगा रहा था। उसने मोबाइल को जोर से सामने दीवार पर दे मारा। दर्द ही दर्द अंदर भर चुका था। पूरी रात वो एक अंधे की आग में सुलगता रहा। पछतावे का एहसास इस कदर था कि वो मारूफ का सामना करने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुबह के वक्त किंजा मलिक इसके घर में आई और बोली, क्या मारूफ को इस घर से भेज दूं? तुम्हें इससे बात करनी है। किंजा मलिक ने कहा तो उसने बेयकीनी से उन्हें देखा कि क्यों जा रही है। उसने तड़प कर पूछा, जाकर उसी से पूछ लो क्यों जा रही है। अगर रो सकते हो तो रोक लो, शायद रुक ही जाए तुम्हारे कहने पर। किंजा मलिक ने कहा तो वो नंगे पांव दौड़ता हुआ कमरे से निकला। वो बैग थामे लाउंज में खड़ी थी। प्लीज मत जाओ, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठते हुए रो दिया, सॉरी, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ आपका। कुछ अरसे के बाद नया बहाना करके आपकी जिंदगी में वापस आ गई तो मुझे फिर से एक कोने में फेंक देंगे। मेरी वफा पर उस बेवफाई की मक्कारी भारी पड़ जाएगी। पूनम लहजे में बोली, खुदा की कसम ऐसा नहीं करूंगा, अगर दोबारा से तुम्हारे साथ बेवफाई करूँ ना तो जान से मार देना। वो तड़प कर बोला, सॉरी, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं, मैं आपको माफ नहीं कर सकती, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मेरा मन किया तो वापस आ जाऊंगी। वो कहती हुई पलटी तो उसका हाथ थाम गया। तुम जो सजा दोगी मैं हर सजा सहने को तैयार हूँ, प्लीज इस तरह दूर मत जाओ। वो बोला तो उसने आलियान की तरफ देखा। मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ, मेरी बीवी खुद नाराज है मुझसे। उसकी निगाहों का मफहूम जानकर घर बढ़ा कर बोला, मैं मशवरा देती हूँ, तुम यहीं रहकर भैया को सजा दोगी। दूरी की सजा का कोई फायदा नहीं होता, पास रख कर जो चोटें मारने में मजा है ना, उसका अलग ही मजा है। परी से ने दांत पीस कर कहा तो आलिया ने घबरा कर किंजा को देखा। आपकी बेटी बड़ी खतरनाक है। वो गड़बड़ा कर बोला, अब तुमने उसे दुख दिया है तो जाहिर बात है इतना गुस्सा तो सहना पड़ेगा, लेकिन ये मत समझना तुम इसे मनाओगे नहीं आकर। मेरे दामाद हो ना तो तुम्हें उसका दिल जीतना ही पड़ेगा, फिर ही अपनी बेटी दूंगी। एक बात याद रखना, मेरी बेटी जो सजा देना उसको पूरी करना, फिर ही तुम उसके दिल में जगह बना सकते हो। उसे चीटर और बेवफा लोग पसंद नहीं है, किंजा मलिक ने कहा तो वो थूक निकलते हुए उसे देखने लगा। फिर मारूफ ने वापस न जाने का इरादा कैंसिल कर दिया। मारूफ कमरे के एक कोने में खामोश बैठी थी और अफनान और उसकी तरफ देखते हुए सोचों में डूबा था। दोनों एक ही कमरे में रह रहे थे, लेकिन उनके दरमियान फासले नहायत वाज़ेह थे। मारूफ हर मुमकिन तरीके से उसके साए से भी दूर रहने की कोशिश करती थी, जबकि अफनान अपनी हर कोशिश में नाकाम होकर उसकी गुर्बत के लिए बेचैन हो रहा था। अफनान आज अपने शो के लिए मील चेक कर रहा था। अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़े एक कार्ड पर पड़ गई। उसने कार्ड उठाया, देखा इस पर एक खूबसूरत गजल लिखी थी जिसके नीचे सीक्रेट फैन लिखा था। वह हैरानी में डूब गया। फिर मारूफ की तरफ देखा जो बेड पर बैठी थी। वो उसे देखकर फौरन निगाहें झुका गई। ओह, तो मेरी सीक्रेट फैन तुम हो।
अफनान मुस्कुराते हुए इसके करीब आया। मारूफ की आंखें भर आई। उसने कुछ कहने की बजाय अफनान को नम आंखों से देखा। अफनान को एहसास उसने जो गलती की थी वो मारूफ को बहुत तकलीफ दे चुकी है। आई एम सॉरी। अफनान ने शर्मिंदा होते हुए कान पकड़ कर कहा। ये सुनकर मारूफ मजीद बर्दाश्त न कर सके और इसके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। अफनान ने मारूफ को अपने सीने से लगाए रखा। दिल में ये एहसास शिद्दत से भर रहा था कि वो कितना गलत था। उसके आंसू अफनान की कमीज को भिगोते जा रहे थे, लेकिन अफनान को कोई परवाह नहीं थी। वो बस चाहता था कि मारूफ का दुख किसी तरह खत्म हो जाए। तुम्हें कभी इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। अफनान धीरे से बोला। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ मारूफ। मारूफ ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में गहरी थकन और उदासी थी। मुझे लगता था तुम कभी समझोगी नहीं, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में पहली बार मैंने कोई सच्चाई देखी। अफनान ने इसके चेहरे को नरमी से छूते हुए कहा। अब मैं हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा मारूफ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से बढ़ने के लिए जो भी करना पड़ा करूंगा। मारूफ ने एक लम्हे को अफनान की आंखें में देखा, जैसे उसके अल्फाज के पीछे छुपी सच्चाई को परख रही हो। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर ठहर गई। शायद हमें एक और मौका देना चाहिए, मारूफ ने कहा। अफनान की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। मैं कभी भी तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। मारूफ ने सर हिलाया और दोनों के दरमियान जो दीवारें खड़ी थी वो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। अफनान ने सोच लिया वो अब किसी भी हाल में मारूफ को वो मुकाम देगा जिसकी वो हकदार थी। इन दोनों के दरमियान जो दूरियां थी वो खत्म हो जाएंगी। फिर वो उसे बाहों में लिए हक जताता चला गया। आलियान आज मलिक हाउस आया था और किंजा मलिक से इजाजत लेकर वो उसके कमरे में आया तो वो ऊंधे मुंह बेड पर लेटी थी और उसने शॉर्ट पहन रखी थी। वो हड़बड़ा कर वापस पलटने लगा, मगर फिर उसे याद आया उसकी बीवी है। वो धीमी सी मुस्कुराहट से चलता पास आया। गुड मॉर्निंग मिसेस आलियान खान, उसके कान के पास चुपकर बोला तो वो हड़बड़ा कर उठी और उसे बेयकीनी से देखने लगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं, फिर घर आकर हमारी शादी की डेट फिक्स करवाएंगे, फिर तुम मेरी दुल्हनियां बनकर मेरे साथ मेरे घर चलोगी। क्या ख्याल है? वो बोला। हरगिज़ नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, ये बात आप अच्छी तरह से अपने जहन में बैठा लीजिए। वो तलाक लहजे में बोली। यार माफ कर दो ना, मेरी बहन ने भी तो तुम्हारे भाई को माफ किया ना, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने इसके बाद से कोई गलती नहीं दोहराई। प्लीज आई एम सॉरी। वो हाथ जोड़कर बोला। उसने तलख मुस्कुराहट से उसे देखा। रिश्ता कोई भी हो, इसमें वफा होना जरूरी है। मैं तुम्हारी दोस्त थी, मगर तुमने अपनी दोस्त के साथ ही बेवफाई की। सॉरी, मैं उस शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो दोस्ती तक नहीं निभा सकता। वो हमारा रिश्ता क्या निभाएगा? वो तलाक लहजे में बोली। आजमा लो। वो बोला तो उसने संजीदगी से देखा। ठीक है, फिर आइंदा से आप मुझसे नहीं मिलेंगे जब तक मैं आवाज़ ना दूँ। तो वो फौरन हामी भर गया, फिर चुपचाप उठा बाहर निकल गया। 5 साल के बाद उसने पिछले 5 साल से अपना एक नाम बनाया था। वो इंडस्ट्री था, जाना माना सितारा था। उसकी अपनी कंपनी, अपना घर, सब कुछ था, मगर एक चीज़ की कमी थी, सुकून। वो हर रोज़ अपने दिल के खाने में एक खालीपन महसूस करता था, जैसे किसी चीज़ की कमी हो। पिछले 5 साल से वो किसी की पुकार का मुंतज़िर था, मगर वो आज भी उससे रूठी थी। आज उसका एक अहम इंटरव्यू था। जब एंकर ने पूछा, हमें पता चला है कि आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं मगर ऑटोग्राफ नहीं देते, ऐसा क्यों? उसकी लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। वजह है मेरी मोहब्बत। उसने कहा था वो मेरी कामयाबी की बुनियाद है। उसने कहा था वो मुझे इस मुकाम पर देखना चाहती है। उसने कहा था कि वो मुझसे सबसे पहला ऑटोग्राफ लेगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब वो मुझसे ऑटोग्राफ लेगी, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी देना शुरू कर दूंगा। एंकर ने हैरत से पूछा, क्या आप अब भी इसके बारे में सोचते हैं? हर दिन हर लम्हा। उसने जवाब दिया। जब मैं कामयाबी की तरफ बढ़ता मुझे उसकी याद आती है। इंटरव्यू के बाद वो मूवी प्रमोशन के लिए एम्पोरियम गया। फैंस उसकी गिर जमा थे, सेल्फियां ले रहे थे। अचानक एक जान पहचान की आवाज़ ने उसे रोका। ऑटोग्राफ प्लीज। वो तड़प कर मुड़ा और वहाँ पैसे को देखकर आंखें भीग गई। उसका दिल धड़कने लगा। कैसी हो तुम? वो बोला। मैं ठीक, और तुम? उसने नरमी से पूछा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मगर तुम्हारे बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं लगता। उसने कहा। मैंने हमेशा तुम्हें याद किया। उसने ऑटोग्राफ के लिए पेंसिल निकाली और आगे बढ़ाते हुए कहा, बस एक ऑटोग्राफ प्लीज। वो ऑटोग्राफ देने लगा। फिर अचानक उसने उसे बाहों में भर लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। परीसी ने धीरे से कहा, क्या तुमने भी मुझे बुला दिया? कभी नहीं। उसने जवाब दिया। आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने तुम्हें अपने दिल में हमेशा जिंदा रखा। तुम मेरी ताकत हो। फैंस ने ये मंजर देख लिया और जान लिया वही इसकी मोहब्बत है। वो दानों बाहें में एक दूसरे की जानिब देखते हुए फैंस को हाथ हिलाकर सलाम कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद वो बाहर की जाने बढ़ गए जहाँ सब उनके मंतज़िर थे। क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? उसने चलते हुए नरमी से पूछा। हमेशा के लिए। परीसी ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन इस बार हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकता। उसने पुख्ता इरादे से कहा। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे एक नए सफर का आगाज हो रहा हो। अब ना वो सिर्फ एक दूसरे के साथ थे, बल्कि अपने ख्वाबों को भी ताबीर कर रहे थे।